Yeah, before I start paper 2 discussion, let me go through this question again, because I got few messages that like I should discuss this question again, because I quickly solved it in the last class, so in short. So let me do this in detail. So what we do, we have to you know uh, just understand fx in terms of gx, right? Fx and gx, we have to find relationship between fx and gx in terms of increasing and decreasing property, when fx increases with respect to gx or when fx decreases with respect to gx. तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर, जैसे मैंने समझा रहा था कल भी, if you see the structure of this, is very obvious that we replace gx equal to tan theta, right? Because we have this formula, sin 2 theta equals to 2 tan theta over 1 plus tan square theta. If you look at this structure here, it's almost the same structure. Instead of tan theta, we have just gx here, या gx है. So वही हमने यहाँ पे पैटर्न मैच करके gx को tan theta डाल दिया. So once we replace that, we get fx in terms of theta, sin inverse, this becomes 2 tan theta 1 plus tan square theta, that is sin 2 theta. Sin 2 theta का फॉर्मूला बन गया. And this I said, you can remember that this is equal to, in terms of theta, 2 theta, when theta is between minus pi by 4 and pi by 4, theta less than minus pi by 4, and theta greater than pi by 4. And, right? So 2 theta की if I had it been 2 theta, then it will be between minus pi by 2 and pi by 2, उस तरह से हो जाता. तो राइट, और ये माइनस, तो दैट पे हमने 2 से डिवाइड करके थीटा की फॉर्म में ले आया है. दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस 2 थीटा. दिस इज पाई माइनस 2 थीटा. इफ यू नो दिस डेफिनेशन, आवर टाइम विल बी सेम्ड. देन थीटा नहीं चाहिए हमें, थीटा को वापस हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, साइन 2 टाइम्स थीटा इज tan इनवर्स gx, tan इनवर्स gx, राइट. एंड मेन तो यहाँ पे राइट पे रिप्लेस करना है. माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स gx, लिख लेते हैं 2 टाइम्स tan inverse gx, and it is pi minus 2 tan inverse gx. And अब इसको भी हम gx की फॉर्म में ले आएंगे. कैसे? So you see that because if I see that if theta is between minus pi by 4 and pi by 4, then tan theta is between minus 1 and 1, right? And tan theta is gx, so gx between minus 1 and 1 आ गया. तो मैंने ये सारे, इसको मैंने यहाँ लिख लिया gx between minus 1 and 1, or we can say mod gx less than equal to 1. Same here, gx less than minus 1 and gx greater than 1. अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो ये gx आउटसाइड 1 है, ये gx between minus 1 and 1 है, it is less than minus 1 and it is greater than 1. So gx outside minus 1 and 1 है. Now ये मेरा fx function है. So now I differentiate this. I can see that when mod of gx is between minus 1 and 1, when mod of gx is less than 1, then I derivative f dash x equals to, I differentiate this. This is 2 times 1 over 1 plus g. I'm applying chain rule. Derivative of tan inverse लगाया मैंने, 1 over 1 plus gx whole square into derivative of gx, that is g dash x. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि gx, ये तो पॉजिटिव पार्ट है. So if gx is g dash x is positive, f dash x is positive. So if g dash x is gx is increasing function, fx is increasing function. ये दोनों का साइन सेम ही है. तो अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो मतलब ये जब भी ये इंक्रीजिंग है तब ये इंक्रीजिंग है. दैट्स व्हाई वी हैव दिस चॉइस. सेम वे if you differentiate this, derivative will f dash x and g dash x will be a different sign. इसका डेरिवेटिव लिया तो आएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस जी एक्स होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स. ये माइनस आ गया, तो ये पॉजिटिव है अगर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो इनका बिहेवियर अपोजिट हो गया, वन इंक्रीजिंग अदर डिक्रीजिंग, राइट. सो दैट वे सेम हियर, यहाँ भी डेरिवेटिव के आगे नेगेटिव आ जाएगा. तो वो एबीसी चॉइस है. राइट, सो हमने ये डेफिनेशन जो याद किया साइन इनवर्स साइन टू थीटा की, ऐसे कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा एंड टेन इनवर्स टेन टू थीटा, तो वो आप एक बार याद करके रखेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन from paper 2. This I would rate as I would say easy question, right? Or in terms of fundamental question है ये, और solving difficulty भी नहीं है.
I'm not, see, this is, we're targeting here the advanced exam, not the mains exam. तो मैं with respect to relative है, fundamental when I say, it's like it's not about from the mains point of view, but from एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ये लेवल फंडामेंटल आएगा। और वैसे ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी है इसमें, कॉन्सेप्ट इज आल्सो फंडामेंटल। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n निकालना है हमें। ये यू नो दिस रिजल्ट दैट a into x to the power n plus 1, if you have a n plus 1, this min plus a n x to the power n, if you have this polynomial, it goes on like this equal to 0. So we know that sum of the roots equals to minus कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 1 minus a n, ऐसे लिख लिया आपने, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, राइट, ये कोफिशिएंट चाहिए हमें, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x to the power n plus 1, राइट। और n plus 1 को ये यहाँ पे मैंने n plus 1 इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे n plus 1 फैक्टर्स हैं, बिकॉज कैसे पता चल रहा है, दिस इज 2n plus 1 c नॉट है, जीरो है बाइनोमियल कोफिशिएंट है इन द फर्स्ट फैक्टर। इन द लास्ट फैक्टर बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2n plus 1 cn, so we have from 0 to n all these binomial coefficients are present, so there are n plus 1 binomial coefficients, तो n plus 1 फैक्टर्स है। तो जब x x मल्टीप्लाई हाईएस्ट पावर जो होगी x to the power n plus 1 होगी, मैंने तभी इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ से मैंने देखा कोफिशिएंट ऑफ x to the power सम ऑफ रूट्स के कोफिशिएंट ऑफ x to the power n डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x to the power n plus 1, ये तो 1 ही है। तो यहाँ से मेरा आ गया कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, ये निकालना है, इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो माइनस, अब सम ऑफ द रूट्स देखते हैं क्या, इनको फैक्टर्स को जीरो करेंगे तो रूट्स आ जाएंगे, इसको जीरो किया तो पहला रूट है माइनस, सारे रूट नेगेटिव आएंगे, माइनस 2n plus 1 c नॉट फर्स्ट रूट, देन सेकंड रूट इज माइनस 2n plus 1 c1 minus 2n plus 1 c2 goes on, ये सारे रूट्स हैं till the last root, till the last is 2n plus 1 cn, right? So and then we take minus common, minus minus will become plus, so we have to find sum of these binomial coefficient, which is very fundamental question। एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट सारे प्रेजेंट कहाँ पे हैं, ये गोज ऑन, ये इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में प्रेजेंट है 1 plus x to the power 2n plus 1 में। और उसमें कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे, वो होंगे 2n plus 1 c नॉट से लेके चलता जा रहा है, सारी टर्म्स हैं 2n plus 1 c 2n plus 1। तो अब देख सकते हैं ये कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं, 2n plus 2। हमें कहाँ तक इनका आधा करूंगा तो लास्ट यहाँ पे देखो, ये n plus 1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और ये n plus 1 है, ऐसे है। और ये जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे 2n plus 1 cn हो गए लास्ट, क्योंकि जीरो से लेके n तक देखो अब n plus 1 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो ये 2n plus 1 cn plus 1 से लेके ये, तो n plus 1 का सेट ही n plus 1 का सेट है, हमें ये सम निकालना है। अब क्लियरली देख सकते हैं, प्रॉपर्टी है कि इनका जो सम होगा वो इन सम के इक्वल होगा, अगर ये a है ये b है, देन a इक्वल टू b, ये सम इनका अगर a है और ये b है, सो a इक्वल टू b है, बिकॉज सिमेट्री है, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड लास्ट, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड लास्ट, बिकॉज ऑफ सिमेट्री सम ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज सेम एज सम ऑफ द लास्ट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट। हमें फर्स्ट हाफ का सम निकालना है, टोटल सम तो पता ही है हमें क्या होता है, x को 1 डाल देंगे, टोटल सम तो 2 टू द पावर 2n plus 1 है, टोटल सम है, इसका आधा चाहिए डिवाइड बाय 2, सो इट इज 2 टू द पावर 2n हो गया सीधा। तो सिमेट्री है, इसके आधा नहीं होता, अगर एक कम होता तो ये माइनस भी करना पड़ता हमें, मान लो मैं हमें एक सम कम निकालना है, n plus 1 करने निकालना है, n कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, तो ये हमें उल्टा माइनस करनी पड़ती, तो माइनस कर देते 2n plus 1 cn को माइनस कर देते, लेकिन अभी नहीं, अभी इक्वल सिमेट्री है, आधों का 2n plus 1 में से 2n plus 2 कोफिशिएंट से आधों का सम निकालना, दैट इज n plus 1। तो ये आंसर आ गया। So this is again a question, which is I will treat as a fundamental question, and implementation is also easy. So if you are not able to think in the exams, and then see where you, what was the problem, where you lagged. So ये अब देखते हैं, ये यहाँ से gx के बारे में निकालना है, then only we can integrate this। gx के बारे में ये हमें रिलेशनशिप गिवन है इंटीग्रल वाली। अब यहाँ से gx को पुल आउट करना है, ये gx इंटीग्रल के अंदर है। अब यहाँ से gx को यहाँ से निकालना बाहर, ये तो पक्का है कि डिफरेंशिएट करना है, जो जीएस बाहर निकालने के लिए। अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। देयर आर टू वेज यू कैन डिफरेंशिएट दिस, वन इज यू कैन ब्रेक दिस इनटू पार्ट्स, यू कैन राइट दिस एज 0 to x, x into gt dt, and then minus t plus 1 into gt dt,
0 to x। तो इसमें अब x यहाँ इंटीग्रेंड में नहीं है, अलग कर लिया हमने। यहाँ x इंटीग्रेंड में है, but again that's not a problem because we can take x out of the integral because integration is with respect to t है, x is independent of t, so we can shift x out of the integral 0 to x gt dt। तो पहले ऐसे लिख लिया हमने, equal to this। Once after it done this, we can use the Leibniz formula to differentiate this। Leibniz formula says that d by dx of an integral where limits are fx to gx, ये लिमिट्स है मेरी, कुछ भी हो सकती हैं, और यहाँ पे एच टी डी टी है, फंक्शन ऑफ टी है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड लिमिट्स आर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स आर आल्सो फंक्शंस ऑफ एक्स। सो व्हाट वी डू, वी रिप्लेस अपर लिमिट gx इन प्लेस ऑफ टी, h में रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेंड में रिप्लेस कर दिया इन प्लेस ऑफ t, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस सेम वे वी रिप्लेस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ t, h of fx मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ f। सो दैट्स द फॉर्मूला, लेबनिज फॉर्मूला डेरिवेटिव का है कि अपर लिमिट रिप्लेस किया हमने, राइट, टी की जगह, into derivative of upper limit, फिर lower limit replace करा and derivative of lower limit, right? This formula can only be used when there is no terms of x inside the integrand। यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, तभी हमने इस x को बाहर लेके तब लगाएंगे फॉर्मूला, x को बाहर पुल किया हमने इंटीग्रेंड में, then only this formula can be used। दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आप रिवाइज कर लेना, करा होगा आपने, in the other formula which is not sometimes rarely sometimes used, not very often, यहाँ पे t और x दोनों होते हैं इस फॉर्मूले में, मॉड्यूल में होगा, चेक करना, ये फॉर्मूला दोनों है इसमें, टी और एक्स दोनों, इसको दो पार्ट आते हैं फॉर्मूले। वी रिप्लेस अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी, जो पहले काम किया हमने, आई एम क्विकली, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। फिर लोअर लिमिट रिप्लेस कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ये काम किया हमने, जहां भी टी आ रहा है उसकी जगह अपर लिमिट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। बस एक और पार्ट आता है इसमें, वी डिफरेंशिएट, सेकंड पार्ट भी है इसका, बिकॉज एक्स इज इनसाइड, वी डिफरेंशिएट इंटीग्रैंड with respect to x, right? And when we differentiate this, taking t constant, t को constant मान के इसको differentiate कर दिया, integrand को differentiate कर दिया। So that's this, the most general formula where x can be inside the integral also, but we don't need to do this। After we have written like this, हमने x को बाहर पुल कर लिया, तो हम अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव, तो वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल कि x इंटू फंक्शन, दो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन ऑफ x है, x का डेरिवेटिव 1, राइट, taking 0 to x gt dt constant plus x constant multiplicate derivative of this integral, derivative of this integral is simply using this formula, the first formula I wrote, it will be simply gx। फिर same way इसको differentiate करना है, for again Leibniz formula, क्या you replace x in place of t into derivative of x, that is 1, then you replace 0 into derivative of 0, that is 0, derivative of 0 is 0। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, x यहाँ replace करना है, x t की जगह replace करना है, x का derivative तो 1 है, so it is minus x plus 1 into gx equal to 4x cube plus 2x। so that's a derivative of this, this is यहाँ पे cap dash x है, right? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, sorry, यही था, implies that after this you can cancel, see x gx will cancel with minus x gx, यहाँ रहेगा minus gx, right, 0 to x gt dt equal to 4x cube। now we have to differentiate again because still we have integral here in terms of g, again we differentiate this, differentiate again, differentiate with respect to, so this, now this will become gx minus g dash x equals to, it should be plus sign, wait, कि तभी उसकी वैल्यू रिप्लेस कर पाएंगे, प्लस साइन कहीं, या माइनस टी प्लस 1 था, या माइनस टी था, या प्लस था, तो ये गलती कर दी थी हमने, राइट, या माइनस टी प्लस 1, सो ये हो जाएगा ये प्लस, या माइनस एक्स, ये प्लस 1, राइट, सो दिस विल बिकम प्लस जी एक्स, ये प्लस, सो इट इज 12x स्क्वायर प्लस 2। तो ये अभी भी gx अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, but we don't need to solve differential equation in gx because we can directly replace the sum of gx plus g dash x here, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, रिप्लेस कर देंगे तो ये ऐसा कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं से 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया, बट और फॉर्मूला लगाया है इसमें डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल का, बट दिस इज समथिंग टिपिकल स्टेप्स। तो अगर आपने अगर पहली बार पहले नहीं किया तो इट माइट बी अ लर्निंग
from this question that you got. Otherwise you should see why you couldn't solve this in exam. So this is again based on differential equation hai. We have to solve this differential equation. That's all we have to do, and then find the area enclosed by the curve y-axis, the x equal to 0 line और y equal to 1 लाइन, ये है, इनके बीच में निकालना है जो कर्व आएगी 0, इनके बीच में एरिया कितना है बाद में आते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं कर्व को. सो इट इज dy डिवाइड बाय dx प्लस xy इक्वल्स टू x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर देखते हैं तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर प्योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, इन y है. तो हमने क्या होगा y इंटू फॉर्मूला लगा रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल x dx, राइट, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आ रहा है x स्क्वायर बाय 2 e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c. तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो याद होना चाहिए, वो लगा दिया यहाँ पे. नहीं याद तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा. सो इट इज y डिवाइड बाय दिस टर्म से y लिख लेते हैं फिर y e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू. अब इसको हम डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं कैसे. हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने x स्क्वायर को 2t ले लिया, लेट x स्क्वायर भी 2t, तो आ गया 2x dx इक्वल्स टू 2 dt, कैंसिल 2 विद 2. तो जो x dx है वो डेरिवेटिव बन गया dt, और ये बन गया e टू द पावर x स्क्वायर को 2t रिप्लेस किया e टू द पावर t dt, ये आ गया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन प्लस c. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप राइट, इन द नेक्स्ट स्टेप आई इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रल इज e टू द पावर t और t की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने x स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, प्लस c डैश कर दो कुछ भी, और ये y टू द पावर x स्क्वायर बाय 2. सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. डिवाइड विद दिस, इफ यू डिवाइड विद दिस y इक्वल्स टू वी गेट 1 प्लस c डैश टाइम e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2. ये दिस इज द कर्व. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c डैश बिकॉज ये गिवन है x इक्वल टू 0 पे y2 है, x इक्वल टू 0 पे y2 है, y2 और x0 मतलब ये तो 1 हो जाएगा. c डैश, दिस इंप्लाइज c डैश इक्वल्स टू 1, सो y आ गया 1 प्लस e to the power minus x square by 2. Yeah, and then you can see what we have to do here. करना क्या हमें, एरिया निकालना था, सॉरी एरिया. तो y इक्वल टू 1 0 पे x इक्वल टू 0 पे y2 आ रहा है. ये कर्व ऐसे फॉलो कर रही है, बेसिकली ऐसे है, ऐसे जा रही है कर्व. वी हैव टू फाइंड एरिया निकालना है, राइट. तो एरिया आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस माइनस 1, ये इनकी एरिया निकालना है. So e to the power minus x square by 2 plus 1 में से माइनस करनी है कर्व, 1 कर्व into dx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दिस माइनस दिस. ये कर्व है e to the power minus x square by 2 plus 1 है, इसमें से 1 माइनस कर दिया अपर, because we have to find area boundary between these two curves. तो ये आ गया 0 to infinity e to the power minus x square by 2 dx. So this question थोड़ा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थे इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है फिर एरिया निकालना है, थोड़ा मैं कह सकता हूँ कई लोगों के लिए फंडामेंटल डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी देखो अपने जो ये e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, अगर यहाँ गलती कर जाएंगे तो मुश्किल होगी आपको. जो प्लस 1 है इसका ग्राफ है कैसा, x इक्वल टू 0 पे, थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा. जो मैंने तो एकदम बना दिया ऐसे, कई लोगों को सब समझ नहीं बना पाएंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा उनको. x इक्वल टू 0 पे y ये 1 है, 1 प्लस 1 2, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ. फिर डेरिवेटिव लिया आपने तो ये देख लिया डिक्रीजिंग फंक्शन है e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 से कर्व स्केचिंग करते हैं माइनस 2x बाय 2, तो ये क्लियरली डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन. फॉलिंग ग्राफ है, और फॉलिंग ग्राफ इस लाइन को अप्रोच कर रहा है. इसकी अगर लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी देखेंगे तो 1 आएगा. वो तो मुश्किल नहीं है देखना, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी अगर देख रहे हो आप तो ये 0 अप्रोच कर रहा है और ये प्लस 1, तो 1 हो गया. तो ये ग्राफ ऐसे हमने आइडिया ले लिया 0 से. तो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालना है, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 एंड दिस एक्सपोनेंशियल कर्व. तो ये आंसर आ गया, बस ये आंसर ही टिक करना था, ये चॉइस है. So this is again a question which is kind of question which you should be able to do in exam. Why? Because if you look at this, a very complex expression. यहाँ trigonometry है, ये trigonometric expression है, पूरा tan inverse भी आ गया साथ में, inverse trigonometry भी आ गया, उसमें trigonometric expression है. तो जनरली इस केस में हम ये देखते हैं कि आप प्रॉपर्टी ये माइनस एक्स वाला लगा दोगे, साइन क्यूब का कॉस क्यूब हो जाएगा, ये कॉस का साइन हो जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला.
तो मेन तो ये था कि किसी एक पार्ट को हम सिंप्लीफाई करना है। सब्स्टिट्यूशन अगर सोचेंगे तो उसमें यही था कि अगर हम इसमें यही था कि sec x प्लस cos x को t डाल दें। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन से इट इज ट्रिकी, इम्प्लीमेंटेशन इज इजी है इसमें। इस लेवल पे कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि एकदम ये आइडिया ही स्पेसिफिक चाहिए था इस क्वेश्चन में। लेकिन वो था कि आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है, तो ये तो अगर सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे तो ये तो ट्राई करेंगे ना इसको, इसका डेरिवेटिव। इसको टी लेते हैं, दो दो लग नहीं रहा है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कहीं पे होगा, लेकिन वो है एकदम पता नहीं चल रहा है। वो इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो क्या था, sec x प्लस cos x का डेरिवेटिव sec x sec x इंटू टेन एक्स, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये डेरिवेटिव है हमारे पास क्या, देख लेते हैं। ये है sec x is 1 by cos x, this is sin x by cos x minus sin x. If you take sin x common, right, and then left over is 1 by cos square x minus 1, LCM लिया 1 minus cos square x divided by cos square x, dx equals to dt. Now this becomes sin square x. Sin square x into sin x is sin cube x. So this is sin cube x divide by cos x. देखो अब पता चला, ये तो बात बन गई, कुछ बन रही है। sin cube x है, cos square x नहीं है, तो आई डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos square x, और इसको मैंने cos square x से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ये तो मैंने इसको t डाल रहा हूँ, सब देखते हैं क्या हो गया। तो 0 to π/2 लिमिट चेंज कर लेते हैं, क्या बाद में क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट द लिमिट, आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ, आंसर को वापस ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैंने ये न्यूमरेटर बन गया मेरा डी टी, बिकॉज डेरिवेटिव है। ये बना tan इनवर्स टी, और ये जो बन रहा है इसको मैंने cos cos टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। न्यूमरेटर को करना पड़ा, डिनोमिनेटर को भी किया हमने, और ये हो गया cos टू द पावर 4 बाय cos स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब ये एग्जाम में इसका पैनिक है तो पक्का, अगर मतलब यहाँ पे तो निकलना मुश्किल होगा। अगर अब ध्यान से देखोगे तो क्या बना है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 अलग करके, 1 प्लस जो बाकी बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको हमने टी माना था, उसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये बना 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, ये टी स्क्वायर ही है, जिसको अपने सेकेंड एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर ही है, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1। And then what we do, we assume tan inverse x equals to z, tan inverse t equal to z, right? यहाँ से समझ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला आपको याद है तो 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला था। एफ एक्स टू द पावर एन है, ये फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एन, 1/f(x to the power 1 n minus 1 plus c). ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिया ना, पर फंक्शन ऑफ ये डेरिवेटिव है और ये tan फंक्शन है 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये राइट। तो इधर वी कैन अप्लाई, डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये उस तरह से बन रहा है 1 बाय फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, और वी कैन रिप्लेस tan इनवर्स x इक्वल्स टू y और z। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से, कि बियॉन्ड डिफिकल्ट नहीं है बहुत से, कि सोच नहीं पा रहे हैं आप, घर पे आके तो कर ही लेंगे, और एग्जाम में बट करना मुश्किल है। टिपिकल आईटी स्टाइल क्वेश्चन व्हिच इज डिफिकल्ट टू डू व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम, बट व्हेन यू कम बैक होम you realize you should have done that question. So that category, that level of question, that type of question it is. तो हमने क्या किया, इसको हमने tan इनवर्स था, ये थोड़ा वियर्ड था, इसको हमने t रिप्लेस कर दिया, राइट। लेकिन उसके लिए डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हमें पता नहीं डेरिवेटिव है नहीं है, वो डेरिवेटिव लेंगे तब पता चला। उसका डेरिवेटिव लेके दिखाया 18 ट्रायल, लेट्स टी द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव मिल गया हमें, सिर्फ cos स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो इसको भी डिवाइड करके यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ टी बन ही गया है, फंक्शन ऑफ टी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसका यहाँ पे, वन एक्सेप्ट वन, बाकी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। So this is a very typical question. Similar question is there in quadratic objective solved example. तो ये तो I expect you should have done this question. ये range ये given है alpha is smallest and then beta and then gamma, and all three of them are less than pi by 2. So it's between 0 and pi by 2. और इसी क्वेश्चन के रूट्स पे कमेंट करना है, तो हमारा तरीका ये होता है कि हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस साइन बीटा इंटू एक्स माइनस साइन गामा प्लस एक्स माइनस साइन अल्फा, और ये एक्स माइनस साइन गामा प्लस यहाँ पे आया गामा है तो दो फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन बीटा,
डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें इसी क्वेश्चन के रूट की बात करनी है, इसी क्वेश्चन के, ये है इसकी क्वेश्चन, राइट। तो दिस इक्वल टू, मतलब इसकी इसकी बात करनी है, दिस इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0। तो मैंने इसके जो रूट्स हैं, सेम एज द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर, तो मैंने इसको gx नया फंक्शन मान लिया, gx इक्वल्स टू x माइनस साइन बीटा इंटू एक्स माइनस साइन गामा प्लस एक्स माइनस साइन अल्फा, सिग्मा लगा सकते हैं इसके ऊपर, एक्स माइनस साइन गामा प्लस थर्ड फैक्टर है, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन बीटा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो इसी के रूट्स हैं, क्योंकि हमेशा अगर ये कुछ भी अगर आपका एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसके रूट्स क्या होंगे, इसको इसको जीरो करोगे आप रूट्स के लिए, इसको जीरो करने का मतलब है न्यूमरेटर को जीरो करोगे, एक्स इक्वल टू वन है, सेम बात, हम भी न्यूमरेटर को जीरो करके रूट्स के, जीएस के रूट्स हैं वही एफएक्स के रूट्स हैं। अगर ये एफएक्स फंक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर भी है, बट डिनोमिनेटर की कोई रोल है नहीं है, रूट्स देखनी है तो न्यूमरेटर के रूट्स होंगे। तो जो कोई इन्फॉर्मेशन इसके रूट्स की होगी, जो प्रॉपर्टी इसके रूट्स की होंगी, वही प्रॉपर्टी इसके रूट्स की होंगी। तो अब तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमने तीन, अब ये किया, पहले किया हुआ, थोड़ा पहले नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा हमने नंबर लाइन में मार्क कर दिया, और असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली, बिकॉज अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा है, तो उनके साइन भी कम होंगे, राइट। अगर एंगल कम है, एंगल में रिलेशनशिप है, तो साइन में भी ये रिलेशनशिप होती है, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन, 0 to π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एक्स को बढ़ाया तो साइन भी बढ़ेगा, तो सेम प्रॉपर्टी हो गई, राइट। आफ्टर दैट नाउ व्हाट आई चेक, आई कैन चेक द साइन ऑफ gx एट साइन अल्फा पे, मतलब साइन, मतलब एक्स को साइन अल्फा डालूंगा मैं तो साइन क्या आ रहा है, एक्स की जगह साइन अल्फा डाला तो जीएक्स का साइन क्या आ रहा है, यहाँ साइन अल्फा डाला, यहाँ भी साइन अल्फा डाला, तो यहाँ साइन अल्फा डालने पे तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो होगा, एक्स को साइन अल्फा रिप्लेस करेंगे, ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये यहाँ से आ रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, विच इज साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा है, तो ये नेगेटिव है। ऐसे ही साइन अल्फा लेस देन साइन गामा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, सो साइन ऑफ जीएक्स एट यहाँ पॉजिटिव साइन है अल्फा पे, साइन अल्फा पे साइन पॉजिटिव है जीएक्स का। सेम वे आप बीटा पे, साइन बीटा पे चेक करेंगे, साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ साइन नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ऐसे है। सो अभी हाइट ही लग रहा है कि मैं ग्राफ जीएक्स का जो ग्राफ है यहाँ पे अबव लाई कर रहा है, यहाँ पे बिलो है इस पॉइंट पे, और यहाँ फिर अबव है, तो बीच में क्रॉस करके गया होगा तभी तो नीचे गया होगा, ऊपर से नीचे, क्योंकि साइन अल्फा पे नेगेटिव है ग्राफ, ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, बिकॉज जीएक्स का साइन नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव था, ऐसे फिर यहाँ पॉजिटिव आया है, तो यहाँ से हमने कह दिया जीएक्स का एक रूट यहाँ होगा और जीएक्स का एक रूट यहाँ होगा, इनके बीच में साइन, एक साइन अल्फा और साइन बीटा के बीच में होगा, साइन बीटा और साइन गामा के बीच में होगा, दो रूट होंगे, दो रूट हैं तो रियल और अनइक्वल रूट्स हैं, और अनइक्वल भी हैं। तो इसमें कोई लोग कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कह रहे हैं कि कि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखते हो, एक्स माइनस साइन अल्फा है, एक्स माइनस साइन बीटा है, एक्स माइनस साइन गामा है, ये तो अगर एक्स को साइन अल्फा रिप्लेस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। हम साइन अल्फा यहाँ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि साइन अल्फा रूट है, तो इसको सेटिस्फाई कैसे करें, हम रूट थोड़ा कह रहे हैं साइन अल्फा, रूट तो कह रहे हैं ये दो के बीच में रूट होंगे, कोई एम एन रूट होंगे, साइन अल्फा तो मैंने एक बार भी नहीं कहा रूट है, राइट। कि मैं जीएक्स को फंक्शन लेके प्रॉपर्टी निकाली है मैंने, और जीएक्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसी की प्रॉपर्टी होगी, जो जीएक्स के रूट है वो इसी के रूट है। तो जीएक्स की इंफॉर्मेशन निकाल दी कि जीएक्स का जो रूट है वो साइन अल्फा और साइन बीटा के बीच में है, यहाँ मैं रिप्लेस नहीं कर सकता था एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तभी मैंने न्यूमरेटर को अलग फंक्शन माना है, कि देखने के लिए कि न्यूमरेटर के रूट्स, न्यूमरेटर को अलग फंक्शन मान लिया, क्योंकि उसमें देखना था मैं कि साइन अल्फा पे साइन क्या आ रहा है न्यूमरेटर का, इसके रूट, जीएस के रूट डिस्कस कर लिए, वो रूट्स एफएक्स के हैं, तो जिस तरह से डिस्कस किए जीएस के रूट्स वो एफएक्स में नहीं कर सकते थे, इसलिए न्यूमरेटर को अलग फंक्शन माना है हमने, राइट। So this is again a fundamental, I will rate this is an easy question, but अगर if your temperament is not good in exam, you find this difficult. अब you might go in wrong direction. So करना क्या है इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं इसके, अगर मैंने इसको एफ माना है, इसे कई तरीके होते हैं, एक तो हम ग्राफ से करते हैं ऐसा क्वेश्चन, मिक्स्ड इक्वेशन है, तो कई लोग ग्राफ में जाएंगे, कि इसका हमने कहा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बिटवीन 0 and 2π, तो हमने कहा कि एक इसको ऐसे लिख लिया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -2 साइन एक्स, फिर अपने कहा इसका ग्राफ बना के इसको मैंने जीएक्स मान लिया, और इससे ग्राफ बना लिया एक्स कॉमन लेके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, राइट, जो भी इससे ग्राफ आएगा बना लोगे, फिर -2 साइन से ग्राफ बना दिया, वो तो ये -2 क्या है, और अपने इसका ग्राफ बना लिया, राइट, वो कर लेना आप।
इसका डी तूने इसका एक ही ओरिजिन से ही पास कर रहा है ऐसे यहाँ से। और डेरिवेटिव भी देखोगे तो क्या आएगा इसका, 3x² प्लस 2x प्लस 4। तो डी नेगेटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका, ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सफली ऐसे ऐसे ग्राफ रफली तो ऐसे होगा। तो अब अपने ये ग्राफ है, इसको ये माइनस साइन चल रहा है, तो ओरिजिन से पास का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, थोड़ा आप ग्राफ ध्यान से बनाना पड़ेगा और देखोगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है इनका, जीरो के अलावा। जीरो इज ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जीरो में, हाँ जीरो है, जीरो तो आ ही रहेगा, उसके बाद नहीं आ रहा है। लग रहा है ये ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा। आप चेक कर लो, ये क्या है, यहाँ पे ये पाई है। अब पाई के ऊपर आप रिप्लेस करोगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, देखो फंक्शन ये, यहाँ पाई रिप्लेस करोगे तो पाई क्यूब और ये प्लस पाई स्क्वायर और प्लस, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो सिर्फ ये तो 2 के आसपास ही रहेगा, ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा, बहुत स्टीप हो जाएगा। ये भी मैंने कहा ऐसे इतना स्टीप होगा ये ग्राफ। यहाँ भी नीचे ऐसे ही जा रहा है ये। तो एक तो तरीका ये आपने ग्राफिकली चेक कर लिया, जीरो इज ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। दूसरा आप डेरिवेटिव से देख सकते हो कि एफ जीरो तो जीरो है ही है, तो बाई स्पेशन दिख ही रहा है, जीरो पर जीरो आ रहा है। अब डेरिवेटिव लिया मैंने इसका एफ डैश एक्स, वो है 3x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2 cos x। अब अगर आप देखोगे डेरिवेटिव कंप्लीटली पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो एक्स तो पॉजिटिव, 0 to पाई में देख रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है। मैंने इस 4 को ऐसे लिख लिया, 2 + 2, 2 अलग कर लिया और 2 अलग करा और 2 कॉमन लेके 1 + cos x लिख लिया। नाउ यू कैन क्लियरली से ये x इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये इसको लेकर 1 2 cos² x/2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जीरो पे जीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पॉजिटिव हो गया ना, सारा ऐसे चला गया। तो ये फंक्शन कभी ऑलवेज पॉजिटिव जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज ये पॉजिटिव है। हमने ये प्रूव कर दिया, ये पॉजिटिव फंक्शन है बिटवीन 0 and 2 पाई। इट कैन नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज पॉजिटिव। सिर्फ जीरो पे जीरो है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। तो इंटरसेक्शन से नहीं देखा हमने, देख लिया कि पॉजिटिव फंक्शन है जीरो के, बिटवीन 0 and 2 पाई। सो बिटवीन 0 and 2 पाई बीइंग पॉजिटिव, इट कैन नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, इट कैन हैव नो जीरोस, जीरो इज ओनली जीरो हियर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा इसमें, फिर जीरो इज ओनली सॉल्यूशन है, या ग्राफ से भी देख लिया हमने। सो दिस इज तो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, मे बी 10th सर्कल का टिपिकल सर्कल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है। हो सकता है पहले भी पढ़ा हो आपने। तो दिस इज नथिंग, आई ड्रॉ बिगर फिगर डायग्राम। ये है, ये डायमीटर है, वो इज अ सेंटर ए बी। आई क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन, राइट। ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने यहाँ पे, एक यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सी पे, एंड दे आर मीटिंग ईच अदर एट डी। तो मैं यहाँ पे ये गिवन है, मैं एंगल एंगल सी ओ ए ये 60 डिग्री है। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू आर, ये आर रेडियस है। ए सी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी, ये डी है। एंड सी डी इक्वल टू एल, सी डी इक्वल टू एल, ये एल। या सो नाउ हाउ वी कैन डू दैट, वी नो। अब ये देखो यहाँ से टिपिकल है, ये दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 90 90, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। टोटल एंगल 120 बिकॉज दिस 60, सो ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 है। तो इस ट्राइंगल के अंदर तो आपका ये आ ही गया, ये एल लेंथ है इसकी, स्मॉल एल लेते हैं, स्मॉल एल है, ये रेडियस आर है, तो यहाँ से आ गया 10 60 डिग्री इक्वल टू एल बाय आर। तो एल और आर में रिलेशनशिप आ गई, एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट, ये जो टिपिकल ट्राइंगल सर्कल में बन रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल लेके, ये देखो ये यहाँ से, अब इसको अगर कई बार अपने सर्कल में किया, ये ट्राइंगल देखते हैं, अभी एंगल हाफ हो जाएगा, आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन। ये इसमें ये 30 डिग्रीज है, ये है आपका d/2, राइट। और ये हमें पता रेडियस आ रहा है, तो यहाँ साइन 30 डिग्रीज इक्वल्स टू d/2 डिवाइड बाय आर, सो दिस गिव्स d इक्वल टू आर। तो d इक्वल टू आर है, और आर है L/√3। तो यहाँ से आ गया L इक्वल टू R√3 है, देखो L इक्वल टू R√3 है और D इक्वल टू R है, सी चॉइस हो गई। तो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड, कुछ ज्योमेट्री लगाया हो गया। Now this is a question based on probability, and again similar question would have done in probability, I think somewhere. So it is given that
This is a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Now coefficients of ABC, coefficients of this quadratic ABC are decided by throwing a head, right? By throwing a coin. Head means 1 and tail means 2. Yeah, and tail means 2, right? तो टॉस करना है, अगर हेड आया तो उसको 1 मानना है और टेल को हमने नंबर 2 मानना है. एंड द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर चूजन बाय टॉसिंग 3 फेयर कॉइंस. तो कॉइन पहला टॉस किया हमने, अगर हेड आता है तो उसको 1 देना है और टेल आता है तो 2 देना है. तो उसका मतलब जो को ए है, ए कैन टेक वैल्यूज इधर 1 और 2. अगर हेड आएगा तो 1, अगर टेल आएगा 2 है. बी कैन टेक ऑल्सो 2 वैल्यूज 1 और 2, एंड सी ऑल्सो कैन टेक 2 वैल्यूज इधर 1 और 2. ये तो ये कोएफिशिएंट्स एबीसी कैन टेक दीज वैल्यूज इधर 1 और 2. ना प्रोबेबिलिटी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉन रियल. तो निकालना है प्रोबेबिलिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. इसकी जगह हम निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि केसेस कम काउंट करने पड़ेंगे. तो अब ये काउंट करके देख लो, आप ऐसे कर लो. देखिए मतलब मेथड सेम ही है. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहाँ पे ग्रेटर है. तो ये हम अब ग्रेटर देन 0 क्या करें, इसका टिपिकल मैथ, मतलब दिस इज द वे आई डू इट, आई लाइक इट. सो बी स्क्वायर जिससे है बी का सेट पता है, बी कैन टेक वैल्यूज 1 और 2. तो बी स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. सो बी स्क्वायर कैन टेक दीज वैल्यूज. ऐसे एसी वैल्यूज क्या ले सकता है, ए हो सकता है या तो 1 या A2 हो सकता है. तो सी भी या तो 1 या C2 हो सकता है. तो एसी कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं लिख लिया. तो A1 C1 ये 1 हो गया, राइट. A1 C2 टू वैल्यूज हो सकती है एसी की, 2 या 4 हो सकती है. सो एसी कैन टेक दिस वैल्यूज. सो 4AC कैन टेक 4 8 16, ये वैल्यूज ले सकता है. अब ये देखो 4AC का सेट ये है, बी स्क्वायर ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ. इनका डिफरेंस कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है. तो इसमें देखो, अब यहाँ से पहला एलिमेंट लिया बी, बी स्क्वायर में से 1, इसमें से मैंने 4 माइनस किया नेगेटिव. पॉजिटिव में 0 और मोर देन 0 चाहिए, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव डिफरेंस है, कुछ भी नहीं आया. तो ये 4 लेते हैं तो एक ही डिफरेंस ये पॉजिटिव बना. देखो एक केस पॉजिटिव आ गया कि जब बी स्क्वायर 4 है और 4AC भी 4 है, इम्प्लाइज AC 1 है, मीन्स A1C1 है. तो ये और यहाँ B2 है. तो एक केस मिल गया मुझे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 है, 0 वाला मिल गया, और यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है डिस्क्रिमिनेंट 0. इसके आप 4 में से 8 माइनस करेंगे नेगेटिव, 4 में से 16 माइनस करेंगे नेगेटिव. तो सिर्फ एक ही केस मिल रहा है, एक ही फेवरेबल केस है आउट ऑफ कितने 8 केसेस. क्योंकि ए कैन टेक हाउ मेनी quadratic equations we can form 8 quadratic equations because coefficient ABC can take two values. A can take two values 1 or 2, B can take two values either 1 or 2, C can take two values either 1 or 2. So we can have to how many quadratic equations, 16 sorry 8 quadratic equation होगी 2 into 2. उसमें से एक quadratic equation ऐसी है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है जो हमने देखा है. इसमें से कोफिशिएंट ये है देखो ये A1C1 एंड B2. तो 1/8 प्रोबेबिलिटी के रूट्स रियल होंगे इसके. तो नॉन रियल कैसे होंगे, 1 माइनस 1/8 से 1/8 प्रोबेबिलिटी है. तो ये तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है, प्रोबेबिलिटी इसमें यूज ही नहीं होती है. तभी प्रोबेबिलिटी टॉपिक ऐसा है कि इसमें तो जो कैलकुलेशन हमने काउंटिंग करनी थी, आप इतना सिंपल क्वेश्चन था कि 8 केस लिख ही लो. ये देखो ऐसे कुछ ज्यादा ये सब करने की फंडा जरूरत नहीं थी. ABC है, A1 तीनों को 1 ले लिया, सारे ऐसे केस लिख पे, ये 1 तो इसको ये 2 है. अब ये इन दोनों को 1 रखा तो इसको 2 कर दिया, राइट. इसको 2 रखा, इन दोनों को 1 रख दिया, फिर 2 2 1 1 2 2 2 1 2, फिर तीनों 2 हो गए. तो ये ऐसे 8 केस हमने काउंट करके लिख लिया. चेक कर लो कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका बी स्क्वायर माइनस 4AC नेगेटिव है, ये एक्सेप्ट कर लिया. बी स्क्वायर माइनस 4AC नेगेटिव है, एक्सेप्ट कर लिया. तो 7 एक्सेप्ट हो जाएंगे आपके ऐसे. तो ये भी ऐसे भी कर सकते थे. इस तरह से मैंने ऐसे समझाया, ऐसे करने की बजाय टेबल बना के कर लो, बिकॉज 8 केसेस हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं है. Now this is an interesting and difficult question. I would say अगर पहले आपने कुछ थोड़ा किया तो ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल दिस विल कम आउट टू बी, मतलब फिर फंडामेंटल डिफिकल्ट आएगा. पहले किया आपने, नहीं पहले किया तो ये ट्रिकी डिफिकल्ट है. ट्रिकी इजी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिकी इजी कर दो, ट्रिकी डिफिकल्टी लेना पड़ेगा. तो इसमें है कैसे, देखते हैं कैसे डिफिकल्ट कैसे. पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन ऐसे आता है, x1 x2 x3 equals to is almost in all the books. We have to find integral solutions of this equation. If you multiply three numbers x1 x2 x3, the product is 1050. So what can the values x1 x2 x3 can take. और इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो किसके सॉल्यूशंस निकालने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज x1 x2 x3 कैन टेक.
इसको फैक्टराइज करा तो 35 इंटू 3 इंटू 10, 10 इज 5 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। तो मैं एक बार मान के पहले नहीं किया, ऐसा समझा रहा हूँ। तो ये पहले दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, बहुत टिपिकल एग्जांपल है। इसका मतलब सॉल्यूशंस के ये हो गए x1 x2 x3, एक सॉल्यूशन हो गया कि ये 7, ये 5 स्क्वायर, ये 3 इंटू 2 6, ये इसका एक सॉल्यूशन है। एक है यू नो यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 7 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसके परमुटेशन, I'm जस्ट राइटिंग फ्यू आंसर्स। एक हो गया यहीं पे सारा 1050 हो गया, 1 1, ये भी इसका सॉल्यूशन है। ये भी कि x1 की वैल्यू ये है और x2 की, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आ रहा है, कि तीन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1050 आ रहा है, ये भी इसका एक सोल्यूशन है, राइट। तो 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो इस तरह से सोल्यूशन निकालने हैं सारे। तो हम ये कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं कि पहले हम इस तरह से देखो आप कि 5 स्क्वायर को छोड़ दो, अभी 7 3 2 को देखो आप। अब आपके पास तीन चॉइस है कि 7 को, जैसे फॉर एग्जांपल लिया आपने 7 को, आप x1 के पास भी जा सकता है, सपोज ये रिसीवर्स है, कंटेनर्स हैं, 7 x1 के पास भी जा सकता है, x2 के पास भी, x3 के पास भी, तीनों के पास, तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो 7 को तीन हमने डिवाइड करना है, 7 को तीन में, तो 7 के पास, सबके पास 7 का तीन ऑप्शन है, सो वी कैन हैंडल 7 इन थ्री वेज, either it goes to x1 column, or it goes to x2 column, or it goes to x2 column. 7 can be handled in three ways. Same way 3 के पास भी तीन ऑप्शंस हैं और इस 2 के पास भी थ्री ऑप्शंस हैं। सो इन तीनों के पास तीन तीन ऑप्शन है, इधर दे कैन गो टू x1 और x2 और x3। अब ये 5 और 5 ये रिपीट हो गया, दोनों सेम है। अब ये नहीं कह सकते कि इसके पास भी तीन ऑप्शन है और इसके पास भी तीन ऑप्शन में, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है ये। तो इसको हम ये लगाते हैं, जैसे 5 स्क्वायर है, कैसे करेंगे, दो 5 है आइडेंटिकल है, इनको डिवाइड तो करना है, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स लगेगा, यहाँ लगा था डिवीजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। तो हमने करना है डिवाइड देम into three groups such that each gets zero or more। ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला होता है n plus r minus 1 cr minus 1 division of n identical items among r groups such that each gets zero or more। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं मिला तो वन आ जाएगा ना, वन तो है ही। अगर लग रहा है कि ये सारे के सारे x1 के पास ही चले गए, 7 भी हो, 5 स्क्वायर भी हो, 3 भी हो, 2 भी, तो बाकी कॉलम में क्या जाएगा, बाकी वन वन चला जाएगा जैसे यहाँ है। तो जरूरी नहीं है किसी को कुछ मिलना चाहिए, किसी को नहीं भी मिल रहा तो वन है उसके पास। तो ये हमने करना है। एन इसमें टू है, जो 5 टू टाइम्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप में तीन है, x1 x2 x3, -1 3 -1, सो इट इज 4c2 6, ये हो गया। तो इसको हम 6 वेज में हैंडल कर सकते हैं, 5 स्क्वायर को 333, सो मल्टीप्लाई करके जो भी है, राइट, 18 इंटू 9 इंटू 18, जो भी आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी डू इट। अब ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, थोड़ा चेंज किया हुआ है। So let's come back to this question. सो हेयर लाइक, पहले तो ये देखो, अब इसमें अब ये कि y, अब इसको क्वेश्चन ऐसे दी हुई है, इसमें x1 x2 x3 इक्वल्स टू y, और y वेरिएबल बना दिया है इसमें। तो y 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ये है। अब तो अगर ऐसे करेंगे कि चलो एक ही क्वेश्चन तो ये है, फिर y को 30 लिया आपने, एक ही क्वेश्चन ये है जो y को आपने 15 लिया, एक ही क्वेश्चन ये है जो y को आपने 10 लिया, ऐसे, और सबके सोल्यूशन निकाल के हम ऐड कर दें, वो भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ऐसे कर सकते थे। तो तो जैसे अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, 30 को फैक्टर, 30 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 30 के बने 3 इंटू 10 और 10 इज 5 इंटू 2। तो इसमें तो वही है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, ये किसी के पास भी जा सकता है, x1 x2 x3, ये भी किसी के पास, ये भी किसी के पास। तो 3 क्यूब नंबर ऑफ वेज हो गया, इसके सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3, प्राइम में लिखना है इसको, प्राइम फैक्टर्स में करना है। तो इन दोनों के पास तीन तीन ऑप्शन है, 3 स्क्वायर हो गया ये 5 इंटू 2 है, तो 5 के पास भी तीन ऑप्शन है, 2 के पास भी तीन ऑप्शन है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया ये भी। तो ऐसे हम अलग अलग भी कर सकते थे। फिर रह गया 6, 3, ये भी 3 स्क्वायर होगा। और फिर 5 है, 5 में तो खाली एक ही है, तो उसके पास खाली 3 हो जाएगा, राइट, खाली 5 है ना, 5 के पास किसी के पास भी जा सकता है 5, तो 3 ऑप्शन है। ऐसे ही 3 है, 2 है और 1 है, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसके पास भी तीन है, 1 के केस में तो एक ही सोल्यूशन होगा, तीनों 1 1 1 एक ही सोल्यूशन होगा। तो फिर हम इनको ऐड कर देंगे, 3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 1, जो भी मतलब आंसर मैच करना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक कर दी होगी, जो भी मतलब 27 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 1, 54 प्लस 10 64, 64 इज 3 टू द पावर, नहीं 64 इज 4 क्यूब,
राइट, तो यही आंसर आएगा। तो एक तरीका ये कर लिया हमने, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को लगा लिया, कि इसमें डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप गेट जीरो और मोर। तो ये आर टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने, या सीधा ऐसे कर लिया कि हर इस ये जो थ्री है इसके पास तीन ऑप्शन है, किसी के पास भी जा सकता है, फाइव के पास भी तीन ऑप्शन है, टू के पास भी तीन ऑप्शन है, तो थ्री 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 क्यूब हो गया, सबको ऐसे ही किया। एक द वेट हैज बीन डन इन द सॉल्यूशन, इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे भी कर सकते थे। तो वो थोड़ा सा मतलब एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। जो आइडिया था वो ये था कि हमने एक ही बार करेंगे, जैसे x1 x2 x3 है, एक और नया कॉलम बना लिया हमने x4, इनका जो प्रोडक्ट है इक्वल टू हमने 30 लिया, तो इसके सोल्यूशन निकाल लिए हमने। राइट, कि 30 को फोर पार्ट्स में करना है, तो 30 के जो 5 इंटू थ्री इंटू जो फैक्टर्स थे, हर एक के पास चार ऑप्शन है, वो x1 x2 x3 के पास भी जा सकता है और x4 के पास भी जा सकता है। सोल्यूशन 5 3 2 हुआ तो ये 1 हो गया, ये 2 3 1 5 हो गया। अब मैंने ये लिया 5 3 1 2, ये मैंने इस तरह के केसेस आ गए। तो कितने आएंगे, इसके पास ही फोर ऑप्शन है, इसके पास ही फोर ऑप्शन, इसके पास ही फोर ऑप्शन है, 4 क्यूब आंसर हो गया। अब ये हो, बाकी सारे केसेस लेने की जरूरत नहीं है, 15 10 नहीं, वो सारे कवर हो गए इसके अंदर। 15 कैसे कवर हो रहा है, कि देखो इस केस में 15 कवर हो रहा है, इस तरह के सोल्यूशन भी आ गए आपके। जब x4 को 2 मिला और ये 5 3 और 1, ये 15 डिवाइड हो रहा है, देखो ऐसे 1 3 5, ये सारे 15 के सोल्यूशन हैं, जब ये 2 है। तो x4 डमी लेने से हमने सारे केसेस कवर हो गए, क्योंकि सारे फैक्टर्स ही है ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे बहुत स्पेसिफिक है, 30 के फैक्टर्स ही हैं सारे के, 5 इंटू थ्रू इंटू टू इंटू वन के फैक्टर्स ही हैं सारे, देखो ये 15 5 इंटू थ्री, ये 10 5 इंटू टू, ये इसलिए ऐसे हो गया। तो इसमें 30 लेने से सारे केस कवर हो गए हैं, क्योंकि हमने डमी रख लिया है। जो 30 से अगर 15 है तो 30 का मल्टीपल के लिए 2 है, तो 2 यहाँ चला जाएगा। अगर हमें यहाँ पे 6 के लिए केसेस निकालने थे, तो 6 मतलब 6 इंटू फाइव है, तो इसको x4 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, फिर ये 5 रख के मतलब 6 3 2 1, 6 1 1, सारे केस यहाँ कवर आ जाएंगे। सो दैट्स द आइडिया, कि डमी रख के, जो कि 30 के मल्टीपल में से जो बाकी मल्टीपल बच गए वो ले लेगा x4। मैं 30 से सारे मल्टीपल नहीं लेने, 30 के जो मल्टीपल नहीं लेने वो यहाँ चले जाएंगे। तो दैट्स आइडिया। जैसे इसमें इंटीग्रल इक्वेशन में कई बार हम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 10 के सोल्यूशन निकालने हैं, लेस देन इक्वल 10 के। तो एक तो केस आप केसेस बनाओ, x1 प्लस x2 x3 प्लस 0 1 2 3 सबके, दिस वन इन इक्वेशन इज इक्वल टू मल्टीपल इक्वेशन। यहाँ भी ऐसे करते हैं, डमी वेरिएबल रख लेते हैं, या इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो ये डिफरेंस 10 या 10 से कम होना चाहिए। जब ये डिफरेंस, ये सम 10 या 10 से कम होना चाहिए। जब ये 10 से कम होगा तो बाकी यहाँ चला जाएगा। यहाँ था देखो, इन तीनों का सम 10 या 10 से कम होना चाहिए, हमने कहा इक्वल टू 10 कर देते हैं, जो बच जाएगा वो x4 को मिल जाएगा। सेम यहाँ था, यहाँ पे हम एक x4 ले लिया हमने, जो मल्टीपल इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 30 नहीं बन रहा, जो फैक्टर बचता है वो यहाँ चला जाएगा। बट अदरवाइज भी आपको ज्यादा टाइम लग नहीं रहा, ऐसे भी कर सकते हैं। So now there are match the column questions in this, and then there are few sorry, match the columns हैं इसमें, and the passage style question है। So this is a question, calculation है, time bound का फर्क हो सकता है, concept wise तो easy था। If the locus of the circumcenter of the variable triangle formed by y-axis, टू line and this variable line, तो ये ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल है उसकी बात हो रही है, सर्कम सेंटर की बात, के लोकस की बात हो रही है। तो ये दिमाग में नहीं आया तो सीधे ही गए कि एंगल 90 है, तो इस पे लाई करेगा, मतलब ये देखो, वो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल वाली बात है, कि इसका लोकस ये देखो, इसका इसके सेंटर का सेंटर यहाँ लाई करेगा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 इज डायमीटर। तो सेंटर क्या है, सपोज x1 y1 ले लिया, क्योंकि लोकस निकालना है इसका। ये y एक्सिस है, ये टू लाइन है y इक्वल्स टू 2, और इस लाइन की क्वेश्चन गिवन है lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू 1। तो मैंने तो एक तो y इंटरसेप्ट लेने के लिए x0 किया, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,1/m, राइट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ y को 2 रिप्लेस करना है, तो y को 2 रिप्लेस करके आ गए यहाँ पे 1 - 2m डिवाइड बाय l इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। ये मतलब मैंने y को 2 रिप्लेस करके x निकाल लिया। तो ये पॉइंट पता है मुझे क्या है, ये वाला इंटरसेक्शन में y को 2 लाइन, और ये पता है y इंटरसेप्ट मुझे 0, अब इसके मिड पॉइंट की क्वेश्चन बन गई 2x1, मिड पॉइंट को लोकस निकालना है, तो ये क्वेश्चन बननी शुरू हो गई है इसमें। और ये वेरिएबल लाइन है, l इज वेरिएबल m इज वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हैं इसमें, देखो l और m। तो मिड पॉइंट से सम लिया x कोऑर्डिनेट्स का, तो आ गया 1 - 2m डिवाइड बाय l, y कोऑर्डिनेट्स का सम लिया तो आ गया 1/m प्लस 2। तो मेरी ये दो इक्वेशन बन गई है एल और एम में। और थर्ड इक्वेशन एल और एम में गिवन थी कि एल 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 कॉमा एम इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इट मींस m स्क्वायर इक्वल्स टू 4l। ये थर्ड इक्वेशन है, एंड देयर आर टू वेरिएबल्स, सो वी हैव टू एलिमिनेट l एंड m। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखें
कि मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, 2 इक्वेशन वहां से मिल गई कि लाइन इंटरसेक्शन में, लाइन का इंटरसेक्शन में वाई एक्सिस निकाल लिया हमने, लाइन का इंटरसेक्शन में वाई इक्वल टू लाइन निकाल लिया, वेरिएबल लाइन का इंटरसेक्शन दोनों से निकाल के फिर मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट इक्वेशन यूज कर ली। बहुत टिपिकल लोकस बेस्ड क्वेश्चन है ये आने के बाद मुझे थर्ड एम और एल दोनों वेरिएबल है, उनको एलिमिनेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन भी चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन गिवन है कि पैराबोला पे लाई कर रहा है पॉइंट एल कॉमा है, थर्ड इक्वेशन ये आ गई। तो बस यहाँ रिप्लेस कर देंगे एल और एम, यहाँ सॉल्व कर लो, एम तो आ ही रहा है यहाँ से, एम आ रहा है। अब x1 को x रिप्लेस कर देते हैं, y1 को y, x1 को x, y1 को y, तो ये 2 टाइम्स y माइनस वन इक्वल टू 1/m है, रेसिप्रोकल लेके m की वैल्यू होगी 1/2 टाइम्स, ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है आपको, 1/4 y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ l रिप्लेस करना है, l रिप्लेस करेंगे, यहाँ से l क्या आ रहा है, l इज इक्वल टू 1 माइनस टू, वही देखो 1 माइनस टू m, m को रिप्लेस कर दिया 1/2 y माइनस वन, मैंने y1 को y रिप्लेस कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2x आ गया, ये l की वैल्यू है, ये कैंसिल करके एलसीएम लेके तो आ जाएगा y माइनस टू डिवाइड बाय 2x इंटू वाई माइनस वन, ठीक है, यहाँ रिप्लेस कर दिया y माइनस टू डिवाइड बाय 2x इंटू वाई माइनस वन। तो अब देखो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करके 8 है, ये y माइनस वन कैंसिल है, तो ये आ गया 1/y-1 इक्वल टू 8 टाइम्स y माइनस टू डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई विद x एंड y माइनस वन, सो x इक्वल टू 8 टाइम्स y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू, ये 8 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू। अब हमें इस पैराबोला का वो निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, तो उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, तभी वर्टेक्स निकाल सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाते हैं वाई में, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो ये बन गया x इक्वल टू 8 टाइम्स y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इधर से जब 8 मल्टीप्लाई होगा ये 1/4 है, माइनस 1/4 है, उसमें 8 मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, तो यहाँ आ गया x प्लस टू इक्वल टू 8 टाइम्स y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो वर्टेक्स आ गया, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 3/2, राइट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, राइट, -2, 3/2, ए चॉइस। तो अगर बी पार्ट देखते हैं तो बस कुछ नहीं, इजी था बी पार्ट इसका, उसी से करना था। लेंथ होता स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड निकालना है, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज लेटेस्ट रेक्टम, जो कॉर्ड फोकस से पास करती है उस भी नोन एज फोकल कॉर्ड, उसमें स्मॉलेस्ट वन इज दिस, द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ द स्मॉलेस्ट लेंथ बिकॉज द परपेंडिकुलर विद द एक्सिस सिमेट्री। तो ये लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, पैराबोला है मेरा ये x+2 इक्वल टू 8 टाइम्स y माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब ये देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो उससे कंपेयर करोगे तो क्या बना, y माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 टाइम्स x+2। तो ये मेरा 4a क्या है, 1/8 है, और 4a लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है, तो 1/8 आ गया लेटेस्ट रेक्टम, 1/8 है। तो ये तो इजी था, मतलब पैराबोला आपने कितना पढ़ा है उस पर बहुत मैटर करेगा ये क्वेश्चन, बट पैराबोला पढ़ा है आपने, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मतलब कैलकुलेशन में गलती हो जाए ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सोचना तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, होना ही चाहिए था ये तो। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस द फंक्शनल इक्वेशन, राइट, ये फंक्शनल इक्वेशन है, तो ये तो कई बार डिस्कस हो चुकी है, कई क्लासेस मैंने पहले ली थी एडवांस वाली, शेयर भी की थी आपसे, बूस्टर की थी, 4 बूस्टर 4 5, कई सारे पेपर थे उस टाइम पे, तो उसमें तो कई कई बार ये डिस्कस हुआ था फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, व्हाट वी डू वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सिमेट्री है तो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई किसी से भी ले सकते हैं, अदरवाइज तो हिट एंड ट्रायल होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1+0 इक्वल टू एफ डैश एक्स 0, बिकॉज वाई को कांस्टेंट मानना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट, -2 2y, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई तो कांस्टेंट है, e टू द पावर y माइनस वन तो कांस्टेंट ही है, इसको ऐसे रहने दिया, e टू द पावर x माइनस वन का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ये डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y कांस्टेंट। अब इसमें से मुझे एक वेरिएबल हटाना होगा, और मुझे ये भी यूज करना होता है, f डैश 0 इक्वल्स टू 1, तो मैंने क्या करा, मैंने मैक्स को पुट x इक्वल टू 0 से बात बनाएगी, इसमें y को 0 नहीं डाल सकते, y को 0 डालोगे तो f डैश डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, वो कैंसिल हो जाएगा, सो पुट x इक्वल टू 0,
if you put x equal to 0, f dash y equals to f dash 0 minus 2y प्लस x इक्वल टू 0 डाला है तो 1 ही हो गया, e टू द पावर y माइनस 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। नाउ हम x की फॉर्म में रखने के लिए पुट y इक्वल टू x कर देते हैं, f डैश x इक्वल्स टू e टू द पावर y माइनस 2y माइनस 1। ये f डैश x इक्वल सॉरी x यहाँ भी तो करना है y इक्वल टू x, सो e टू द पावर x माइनस 2x माइनस 1। f डैश 0 भी तो आएगा, f डैश 0 क्या है, वो 1 है तो 1 भी आएगा, 1 से 1 कैंसिल ही हो गया ये। तो f डैश x मेरा है e टू द पावर x माइनस 2x, तो इंटीग्रेट करके क्या f x क्या आ गया, e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो हो गया। अगर आप अब f0 देख लेते हैं, अगर इसमें f0 इस वाली क्वेश्चन में आप तरीका ये होता है, इसमें आप x को 0 y को 0 डालेंगे तो आ जाएगा f0 प्लस 0 इक्वल्स टू f0 प्लस f0 प्लस 0 प्लस 0, सभी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से f0 इक्वल टू 0 आ गया, f0 इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो 0 इक्वल्स टू e टू द पावर 0 माइनस 0 प्लस c, तो इट कम्स आउट टू बी c इक्वल्स टू c इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, राइट। Yeah, c equal to minus 1. So what we get is f dash fx equals to e to the power x minus x square minus 1, ये fx है। अब fx की प्रॉपर्टी बतानी थी बाकी, तो जैसे f2 निकालना है, f2 है, f2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, f2 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया e to the power 2 माइनस 4 माइनस 1, सॉरी e स्क्वायर माइनस 5, यस ये है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी देखना है हमें, तो ये गलती मत करना, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो पहले तो ये कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट में हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर ही हो गया है, क्योंकि ये तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5। ये इंटीजर तो रिमूव ही कर सकते हैं इसके अंदर से, इसको ऐसे लिख के ना 1 प्लस 0.5 है, तो इंटीजर तो हटा ही दिया हमने, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 हो गया है, सेम ही है। तो सेम वे हमने -5 तो हटा ही सकते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर देखना है। अब ई स्क्वायर, अब देखो ई स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर होता है ऐसे देख लो, 2.7 एंड 2.7 मल्टीप्लाई करोगे वो 7 पॉइंट समथिंग आता है, 7 7 49 4 goes on, right? 7 into 2 14 plus 4 18, 2 into 7, तो ये बनता है 7 पॉइंट समथिंग बनता है, 7.29 7 पॉइंट समथिंग। तो हमने क्या करा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, तुमने ये कर लिया इसका। अब उसको ऐसे ऐसे कर लो, अब बेटर है कि समझना आसान होगा, इसको ऐसे लिख लो, ई स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई स्क्वायर, राइट। ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लिख लिया। तो ई स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई स्क्वायर इज 7, राइट, बिकॉज ई स्क्वायर इज 7.29, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7, ऐसे लिख लिया, राइट। तो ये आगे से ध्यान रखना है कि पहले तो इंटीजर हटा ही दो, तो रखना ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर देखना है। और ई स्क्वायर के फ्रैक्शनल पार्ट में देख लिया, ई स्क्वायर जो है वो 7.2, उसको ऐसे ये फॉर्मूला लगा लिया हमने, ये फॉर्मूला लगा लिया, इससे इजी हो गया। तो सीधा सिर्फ ई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है जो 7 है। नाउ द बी पार्ट इज अगेन वेरी इजी, इसको तो अपने अब f0 देख सकते हो, 0 f0 1 आ रहा है, f0 1 है यहाँ पे, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं है, इसको सीधा भी कर रिप्लेस भी कर लो, ऐसा तो कोई बात नहीं, f2x रिप्लेस ही कर लो यहाँ पे। लिमिट x अप्रोचेस 0, 2x e टू द पावर 2x माइनस 2 डालना है इसको, 4x स्क्वायर माइनस 1, फिर है प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया इससे। और फिर हमने LH रूल लगा दिया, e टू द पावर ये एक्सपेंशन लगा लो और जल्दी हो जाएगा उससे। लिमिट x अप्रोचेस 0, e टू द पावर 2x एक्सपेंशन है 1 प्लस 2x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर, cancel this with this with this, cancel x square with x square, so limiting value is 4 divided by 2 factorial, 4 by 2 that is 2, right? So again a question that you should have done in exam and scored in exam.
So it's a question based on probability. Though question is easy question, but sometimes people get confused in the probability question. So if I say like है नहीं tricky, लेकिन अगर confidence नहीं है probability पे, तो you can put under the category of tricky question. So the question goes like this: in an objective paper, there are two sections of 10 questions each. So section 1, and this is section 2. There are 10 questions, 10 questions. ये single choice वाले हैं, ये more than one correct. ये single choice है, लेकिन 5 choices है इसमें, A, B, C, D, E. ये single choice में 4 choices हैं, A, B, C, D. राइट? तो इस तरह से सेटअप है. अब इसमें इसका करेक्ट, इसमें 1 मार्क मिलेगा, करेक्ट करेंगे इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे. पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन. इस तरह से क्वेश्चन है. इफ यू डू अ मल्टीपल मोर देन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2 यू गेट 3 मार्क्स. इफ यू डू सेक्शन 1 क्वेश्चन यू गेट 1 मार्क. और सेक्शन 1 में 5 चॉइसेस हैं हर क्वेश्चन के अंदर कि प्रोबेबिलिटी. अब इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब टू करेक्ट प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर, करंट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें. और गैस से सारा अंदाजे से करना है. कोई आता होता है, किसी को नहीं गैस वर्क करना है. गैस वर्क की प्रोबेबिलिटी ये 1/5 हो गई, बिकॉज 5 में से कोई भी करेक्ट हो सकता है. 1/5 प्रोबेबिलिटी है, कोई भी चूज कर. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर निकालने की क्या है, 1/15 है. तो पता ही होगा इसको चूज करेंगे या नहीं करेंगे. इसको नहीं करेंगे तो देयर वी कैन आंसर इन 15 वेज. क्योंकि ये होगा 2 टू द पावर आंसर. ए को टिक करा नहीं करा, मोर देन 1 है, बी को किया नहीं किया, सो वी कैन आंसर इन 16 -1. किसी को तो टिक करेंगे. सो 15 वेज होते हैं हमेशा मोर देन 1 के अंदर. ऐसे देख लो, आप सिंगल चॉइस टिक करोगे तो ABCD है. मोर देन 1 करोगे तो ABBCCDD, AD AC BD, ऐसे 6 होते हैं. फिर ABCBCD ACD, और फिर ABCD, 15 चॉइस बनते हैं. पता ही होंगे आपको, 15 ही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग करेक्ट आंसर इज 1/15. तो ये कुछ टाइप है. क्वेश्चन क्या है, इफ कैन अटेम्प्ट्स वन ओनली 2 क्वेश्चंस बाय गेसिंग, वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड वन फ्रॉम सेक्शन 2. एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में से किया उसने, एक 2 में किया, तो उससे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, दोनों करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या. प्रोबेबिलिटी स्कोर्स इन बोथ द पेपर. तो यहाँ से क्वेश्चन लिया, वो भी करेक्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी 1/5 ली है. यहाँ से क्वेश्चन लिया, उसको भी करेक्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी 1/15 ली है. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/75. राइट? ये दोनों करेक्ट करने हैं. सेक्शन ए का भी क्वेश्चन करेक्ट करना है, सेक्शन बी का भी. राइट? तो अगर किसी को अगर ये समझना है क्वेश्चन, ऐसे कई लोग ये कहते हैं इस तरह से क्यों नहीं, कि कई लोग ऐसा समझाना पड़ता है कि जैसे मान लो कि वो कहते हैं क्वेश्चन चूज तो किया नहीं आपने, सिर्फ सिर्फ करेक्ट कर दी. करेक्ट तो पहले क्वेश्चन चूज करेगा तभी तो उसमें गैस वर्क करके करेक्ट होगा. तो चूज करने में क्या होगा, चूज करने क्वेश्चन करेंगे तो कितने. अब देखो ये है कि हाउ मेनी वेज यू कैन. अब इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं चूज करना ना, कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते. यू कैन चूज क्वेश्चन इन 5 वेज. राइट? और तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए गया प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, question is selected into probability, question select solved correct, guessed correct. तो ये मैंने इसलिए लिया कि 1 ही है. क्वेश्चन है सिलेक्टेड, सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. इट कैन बी क्वेश्चन ए, तो 10 क्वेश्चन, इट कैन बी एनी क्वेश्चन. सो 10/10C, 10 डिवाइड बाय 10C, 10 आ जाएगा. इतने फेवरेबल वेज है कि कोई भी क्वेश्चन चूज करे, इतने पॉसिबल वेज हैं, सो इक्वल ही है. क्योंकि बिकॉज इट कैन सिलेक्ट एनी क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी 1 की कोई भी क्वेश्चन चूज कर लिया. तो 10/10 ऐसे समझ लो आप. 10 फेवरेबल क्वेश्चन हैं और 10 ही पॉसिबल है. ये कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं. तो दैट्स व्हाई वो हमने लिया नहीं था. Now B part is the main part. If a candidate attempts only 2 questions, sorry, yeah, next page पे है शायद. Yeah, if a candidate in total attempts 4 questions, all by guessing, then the probability of scoring 10 marks. अब ये नहीं बताया कि सेक्शन 1 में से कितने चूज करने हैं, सेक्शन 2 में से 4 क्वेश्चन चूज करने हैं. तो अगर उनके जो चारों के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स उसके 10 आने चाहिए. ये 10 है. तो किस तरह से आप 4 क्वेश्चन चूज करें, कितने सेक्शन 1 में से कितने सेक्शन 2 में से, कि सबका मार्क्स का सम 10 होना चाहिए. चारों करेक्ट है, स्कोरिंग 10 मार्क्स.
नहीं तो ये भी नहीं बोला सारे करेक्ट होने चाहिए, अटेम्प्ट अटेम्प्ट 4 होने चाहिए। नहीं तो चार का मतलब यू नो किस तरह से करेंगे बाई इंस्पेक्शन, ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन से नहीं, बाई इंस्पेक्शन देख लेते हैं कि अगर वो जैसे पहले क्वेश्चन में एक वन वन के चूज करना शुरू करता है तो फिर यहाँ पे फोर फोर होना चाहिए। वन का एक लिया तो कैसे होगा, वन का एक लिया तो तीनों मिला के नाइन होना चाहिए, तो थ्री 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 तो मिनिमम होने चाहिए। लेकिन हाँ एक तो ये केस आ गया, एक सिंगल चॉइस में से लिया उसने, और थ्री उसने सेक्शन वन में से लिया उसने, और ये तीन सेक्शन टू में से लिए। एक केस तो ये आ गया। और देखते हैं कि अगर अब दो सेक्शन टू में से लेगा, मतलब ने ये क्या, अगर दो दो ले लेता, सेक्शन वन है ये सेक्शन टू है, अगर दो यहाँ से लेके दो ले यहाँ से लेके सॉल्व करता है, यहाँ से दो ही मार्क्स मिलेंगे उसको, और यहाँ मिलेंगे 6 मार्क्स, तो टोटल 8 मार्क्स हो गए। वो भी नहीं बात, 10 मार्क्स होने चाहिए, राइट। तो इसको बढ़ाना ही पड़ेगा इसकी, मतलब आपको ये 6 है ये तभी तो उसको बढ़ाने के लिए 3 करना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लेगा तो 9 मार्क्स यहाँ से आ गए और 1 मार्क यहाँ से आया, और कोई केस बन ही नहीं रहा कि 10 का और कोई केस नहीं बन रहा, राइट। हाँ अगर ये होता कि 8 होता फिर केस बनाने पड़ते थे, वैसे 8 होता तो टू टू टू, ये 3 मार्क्स, ये तीन तीन, ये सॉरी टू, ये दो क्वेश्चन यहाँ से करता, थ्री थ्री मार्क्स आते, दो यहाँ से करता, एट एक एक केस आता। और कोई भी आता है इसमें क्या, खाली थ्री लिया और फिर वन 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 नहीं तो 6 हुआ, उसमें भी एक ही केस बना अगर 8 मार्क्स हैं तो। जितने कम करेंगे उतने ज्यादा केस बनेंगे, तो यही था, अगर 6 होगा तो फिर शायद हो सकता होगा, यहाँ से थ्रू दो किए, यहाँ से भी दो किए, सॉल्व नहीं किए, गलती 0 0 मार्क्स आए, राइट। या फिर 6 में फिर, या फिर यहाँ उसने किया थ्री, यहाँ पे एक वन वन वन, या 6 ये बन गया, दो केस बन गया इसमें देखो, यहाँ पे 0 या ये केस आया। तो इस तरह से अपने बाई इंस्पेक्शन केस बना रहे हैं, यहाँ एक ही केस बन रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से लिया, तीन यहाँ से लिया, अब ये एक क्वेश्चन लिया उसने 10C1 में से, राइट, और ये उसमें 10 में से तीन क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 20 में से उसने चार क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, राइट। एंड देन प्रोबेबिलिटी जो वन क्वेश्चन सेलेक्ट, द क्वेश्चन सेलेक्टेड यहाँ पे वो 1/5 है, सेलेक्ट करने करेक्ट करने के जो तीन क्वेश्चन सेलेक्ट किए इनको, कि 1/15 है, तो 1/15 के ऊपर लिया हमने, राइट। सेटअप 4 क्वेश्चन का है, ये कई लोग कहते हैं ऐसे, वो ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना कि 10C1 आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो, नहीं तो उसे करना पड़ेगा, नहीं ऐसे। तो मैंने कि हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे समझ लो आप, कि अगर किसी को ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे समझ लो कि पहले अलग करते हैं सेलेक्ट, फेवरेबल और पॉसिबल अलग कर लिया। फेवरेबल में क्या है, उसने एक क्वेश्चन सेक्शन वन में से लिया, तीन क्वेश्चन इतने लिए, अब क्वेश्चन चार आ गए उसके पास, सारे करेक्ट करने कितनी ऑप्शन है, सबकी वन वन ऑप्शन है, राइट। मतलब उसमें से चॉइस चूज करनी है, एक एक करेक्ट चॉइस चूज करनी है, एक एक वैसे चूज कर सकता है वो। फिर पॉसिबल वेज क्या होते हैं कि वो चार क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, 20C4, टोटल में से चार क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंट है कि चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एक्सपेरिमेंट ये मत करना है, इसमें ये करोगे तो गलत हो जाएगा, कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया 10C1, यहाँ से, ये तो फेवरेबल वेज है, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन, बाकी तो है कि कितनी, हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट क्या है कि चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, वो कहीं से भी ले, हो सकता है सेक्शन टू में से ले ले, सेक्शन वन में से ले ले, कहीं से भी चार क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। हाँ फेवरेबल वेज में आ रहा है कि तीन उसको सेक्शन टू में से लेने पड़ेंगे और एक सेक्शन वन में से लेना पड़ेगा, तभी मार्क्स बनेंगे उसको, और करेक्ट करेक्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो करेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम वन वन ऑप्शन कर दिए, हर के लिए वन वन ऑप्शन है, ऐसे चार जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसमें एक एक ही ऑप्शन है, करेक्ट वाली ऑप्शन चूज करिए। तो टोटल में से चार क्वेश्चन लिए, और चारों में से अब चार जो क्वेश्चन लिए उसको, उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं, जैसे ये वाला सिंगल चॉइस वाला है उसके पास तो पांच तरह से अटेम्प्ट कर सकता है, ABCD कोई भी चूज कर सकता है, और मोर देन वन वाले के अंदर 15 15 वेज में अटेम्प्ट कर सकता है। समझने का तरीका फर्क था, ये आपने मतलब फेवरेबल वेज निकाल लिया, ये आपने पॉसिबल वेज निकाला, कितने अटेम्प्ट कर, कितने तरह से अटेम्प्ट कर, कितने तरह से वो ट्राई कर सकता है। एक्सपेरिमेंट चार क्वेश्चन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चार क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसने, और हर क्वेश्चन में कैसे इसमें से पांच में से कोई भी चॉइस चूज कर सकता है, इनमें से भी 15 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, मोर देन वन के अंदर, दैट वे।
Now we have matched the column, and match the column in this, let four match the column, which are like too much, because match the column takes time. So this paper, well, it's a lengthy paper from considering the match the column. So it takes time to do match the column. So I'll be back in 5 minutes. Okay, then I'll discuss these four match the columns.
I'll do this match the column first and then I'll go back to the other one. So this is I would say this like, you know, I understand the speed is required, but as such, if you see the questions, the kind of the concepts they involve, you would have done them before. The concept wise they are fundamental. This function is not defined at x equal to 0. Redefine the value of f0 so that it is function is continuous. तो टिपिकल क्वेश्चन है कि जो उसकी जीरो पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो आप रीडिफाइन करो कि किसके इक्वल करोगे, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करना है, सो इसकी लिमिट निकाल के जो वैल्यू आती है, राइट, वही हमारी जीरो पे वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी लिमिट निकालनी है जीरो बेसिकली। तो साइन एक्स स्क्वायर को तो हम सिंपल से ही सिंपल कर सकते हैं, इसमें ये तो ये वन को अप्रोच कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन में ना साइड में कर दिया उसको, दिस पार्ट इज अप्रोचिंग वन एंड देन लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो। इफ यू सी दैट इसको हमने एक्सपेंशन यूज कर ली e टू द पावर एक्स कॉस एक्स में, उसका एक्सपेंशन होगा वन प्लस e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है, उसमें मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह एक्स कॉस एक्स, वन प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन माइनस एक्स कॉस वन, और फिर यहाँ कॉस एक्स का एक्सपेंशन डाल दिया। तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन डालेंगे तो आएगा एक्स बाय वन फैक्टोरियल, कॉस एक्स का एक्सपेंशन है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। ये एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर एक्स में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट, माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से वन से वन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ से अब जो टर्म आएगी यहाँ से एक्स, ये ऑलरेडी वन है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढनी है हमने, क्या आती है यहाँ से, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस पर फैक्ट स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, बाकी सब तो हायर पावर्स है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो आंसर हाफ आ गया, राइट, ये हाफ आ गया। तो एक्सपेंशन से इजी हो गया मैनेज करना, बाकी एलएच रूल से भी कर सकते हैं अगर आपने करना है, एलएच रूल से भी शायद जल्दी हो जाएगा एलएच रूल से। नीचे इसको अलग ही रख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर बाय, या नहीं भी करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, और राइट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है e टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस वन, ये है शायद नहीं, क्योंकि अब आगे और भी करना पड़ेगा इसमें, राइट, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, सॉरी, e टू द पावर ये वन को अप्रोच कर रहा है, ये वन को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को है, तो अभी जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म में फिर दोबारा एलएच रूल लगाना पड़ेगा एक बार और, तब हो जाएगा, सेकंड टाइम एलएच रूल के बाद हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से, एक एक्सपेंशन मेथड है। Now value of this definite integral is this where a and b are integers, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इसमें x को टी क्यूब, ये भी ये हाफ वन बाय थ्री पावर है, ये हाफ पावर है, x को टी टू द पावर सिक्स रिप्लेस कर लो, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट, इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर दिया बाय रिप्लेसिंग x इक्वल टू द पावर सिक्स, बाकी कैलकुलेशन करनी है। इस वाले इंटीग्रल के अंदर अगर आप देखेंगे गिवन दिस, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो ये है e टू द पावर माइनस थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, ये है डी थीटा, तो ये तो स्पेशल इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, उससे आ जाएगा, ये जो था e टू द पावर एक्स, सॉरी स्पेशल इंटीग्रल में जो e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है dx इज इक्वल टू e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, तो उससे दिख रहा है, उससे पैटर्न से जब भी e टू द पावर एक्स यहाँ पे होगा और इस तरह से कोई और टाइप का फंक्शन होगा तो ट्राई करना ही है। एक काम और कर लेते हैं, माइनस थीटा को हम एक्स रिप्लेस कर लेते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा ना, माइनस थीटा को एक्स रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू माइनस एक्स, तो ये तो सेकंड स्क्वायर एक्स ही रहा, ये टेन एक्स हो गया, तो देखो बन गया इसका डेरिवेटिव, ये बाद में फिर लिमिट भी रिप्लेस कर लो, राइट, कर लेना फिनिश में, तो आइडिया सब में दे रहा हूँ आपको। ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये ये इंटरेस्टिंग है, ये माइट बी डिफिकल्ट ऑफ द रिमेनिंग,
कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट डिफाइंड है, एफ एक्स इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री गोज ऑन अप टू एक्स माइनस 2009। तो ये आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स हैं, 2009 टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, ऑड फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है हमने 1 से लेके 2009 तक, राइट। ये सारा यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है। तो मैं अब, तो आइडिया इसमें ये था कि ये आई है, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दो ए प्लस डी माइनस एक्स की, आई इक्वल टू 1 to 2009 एफ ऑफ क्या होगा टू, ये हो गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ए प्लस डी माइनस एक्स की, एफ ऑफ ए प्लस डी माइनस एक्स 9 दिस प्लस दिस माइनस एक्स के। और अब रिप्लेस करना शुरू करो, अब देखो क्या आएगा, रिप्लेस करेंगे 2000 सब में, सब ने एक्स की जगह रिप्लेस करना 2000 माइनस एक्स, 2010 माइनस एक्स, 2010 माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी जगह, तो आ जाएगा 2009 माइनस एक्स। सेकेंड फैक्टर में आ जाएगा 2008 माइनस एक्स, 2007 माइनस एक्स गोज ऑन, लास्ट फैक्टर में आएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। सब में से माइनस कॉमन लिया, सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ ही जाएगा बिकॉज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, और सब में से तो ये फिर वो टिपिकल आपको देखो क्या बना, एफ एक्स ही बन गई। तो ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस बाहर आया 2009, वापस एफ एक्स बन गया, एफ एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू माइनस आई बन गया, इंप्लाइज आई इक्वल टू 0, राइट। तो ये प्रॉपर्टी ए प्लस डी माइनस एक्स की लगानी थी, लेकिन तभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, एकदम ये ऑब्वियस नहीं था देखना, तो आइडिया अगर प्रॉपर्टी लगा के शायद तभी आइडिया आ जाए कि माइनस बाहर कॉमन आ रहा है, बट इंटरेस्टिंग। Let's see this, the calculus one, and then we'll go to the other one. So this is again based on लिमिट्स है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं एज एक्स अप्रोचेज 0 दिस अप्रोचेज 1 एंड पावर अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो इट्स अ टिपिकल वे ऑफ डूइंग बेस अप्रोचिंग वन, पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी प्लस वन माइनस वन करके इसका रेसिप्रोकल यहाँ बना लिया, राइट। एक्स माइनस, यू नो हाउ टू डू दिस, ये भी करना पड़ेगा, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, ये बन गया ई। सो ई टू द पावर साइन एक्स। अब एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, use expansion to do this, very easy after that. Now value of this ये थोड़ा सा tedious ज़्यादा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बेस अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और पावर अप्रोच कर रही है जीरो को, बेस ये। तो व्हाट वी डू इन दिस क्वेश्चन, आपको एक्सपोनेंशियल बनाना ही पड़ता है इसमें। सो व्हाट वी क्या कर लेते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिखा कि लॉग ले लो या ई की पावर में लिख लो, कैसे भी लॉग ले लेते हैं, एल एन एल लिमिट है तो एल एन एल कर लिया दोनों साइड पे, लॉग एल या एल एन एल इक्वल्स टू tan 1 by root n into log of n square by n minus log of n minus 1, राइट। मैंने log a भी प्रॉपर्टी लिखा दी, log a minus log b, एंड देन 2 भी यहाँ ला सकता हूँ मैं। तो ये आ गया, अब LH रूल से कर लेंगे इसको। ये हो गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी भी है 2 times log n minus log of n minus 1 डिवाइडेड बाय 10 का cot 1 by root n, ये है। अब LH रूल लगा दिया, राइट। ये इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, यही देख लिया था, इन्फिनिटी पहले देख लिया था हमने। सो डेरिवेटिव 2 बाय n माइनस 1 over n माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 1 by root n इंटू डेरिवेटिव 1 by root n, वो आएगा माइनस हाफ n टू द पावर माइनस हाफ इंटू माइनस 1 माइनस 3 by 2 पावर। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, मिस्टेक ना हो इसमें। ऊपर एलसीएम एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एलसीएम ले लिया हमने, 2n माइनस 2 माइनस n
डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले गए साइन स्क्वायर 1/√n, माइनस भी था बाहर रख लिया, और पावर जो है हमारी यहाँ पे है ऐसे, ये माइनस हाफ है तो माइनस माइनस इसको माइनस को प्लस कर दिया और हाफ को ऊपर 2 ले गए ऐसे, राइट। एंड देन जो n टू द पावर यहाँ पे n टू द पावर 3/2 n√n यहाँ पे है, ऐसे है अभी। तो ये n से कैंसिल हो गया, √n को नीचे ले, n को नीचे √n है, तो हमने यहाँ पे मुझे 1/n चाहिए, क्योंकि ये लिमिट 1 बन जाएगी अब, तो n भी ले लिया मैंने ऐसे, देखो ये मेरी 1 बन गई लिमिट, ये √n का स्क्वायर है ना, साइन ये साइन साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 1 होती है, बिकॉज ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो एंगल 0 अप्रोच करेगा, तो ये भी 0 है, सो ये लिमिट 1 बन गई। ये मेरा बन रहा था n-2, सो n-2 डिवाइड बाय n-1 ये बचा हमारे पास, और यहाँ पे है 1/√n। ये अगर n से डिवाइड कर देते हैं तो ये देखो 1-2/n, 1-1/n, ये 1/√n है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये आप देखो ये 0 होगी लिमिट वैल्यू, राइट। तो ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है, ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो 0 हो गया, सो ln इक्वल टू 0, सो e टू द पावर 0 इक्वल टू l इक्वल टू 1 हो गया, 1 आ गई लिमिटिंग वैल्यू। तो ये थोड़ा LH रूल लगाया, TDS कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिस पे आपके कितना कंफर्टेबल है प्रैक्टिस में। Now the number of solutions of this equation is again very easy. If I take 8 common, write sine to the power 4x plus cos to the power 4x as 1 minus 2 sine square x cos square x equals to 5। तो ये हो गया माइनस ये 5, एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से 8 आ रहा है, इधर से 5, तो ये 3 हो जाएगा, उधर जाके 16 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 16 ये हो जाएगा 4 कंबाइन करके 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, तो आ गया साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 3/4, सो साइन 2x इक्वल्स टू √3/2, और साइन 2x इक्वल्स टू माइनस √3/2। अब इंटरवल है 0 2 पाई, ग्राफ बनाएंगे साइन 2x का तो ये ग्राफ बनेगा, दो साइकिल आ जाएंगे पूरी 2 पाई में, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है अपने √3/2 माइनस √3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कितने, 4 ऊपर आ रहे हैं 4 नीचे आ रहे हैं, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 8 रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 हो गए बिकॉज ग्राफ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लिए। Now this is D part is interesting here. The difficult है D part. D part में इस तरह से मैं अलग से लिख लेता हूँ। So it's like this. ये मुश्किल नहीं है लेकिन आइडिया वाली बात है, मॉड ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक मिनट fx, ये fx is a non-constant polynomial function है, gx is differentiable for all x belongs to R, the minimum number of distinct roots of this, so it's like this, gx की d differentiable function है और fx के minimum roots निकालने हैं, minimum roots of fx equal to 0 निकालना है। gx is differentiable, तो पहले gx differentiable है, मैंने ऐसे देखो mod x mod of x minus 1 mod of x minus 2 into mod of f ऐसे लिखा, राइट। तो अब ये देखो कि अब x इक्वल टू मॉड जब भी आता है कॉर्नर आता ही आता है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ऐसी खाली ये होता है ये नहीं होता, तो ये 0 1 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता, पक्का पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे ये देख लो x इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे लिख के इसका मॉड है, अभी मैंने ये हटा दिया खाली ये देखा है, तो ये पॉलिनोमियल ड्रॉ करेंगे अगर आप ओरिजिन से पास कर रहा है 1 से 2 से और ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, मतलब अगर आप ये इस तरह का ग्राफ है, फिर मॉड ले लिया तो कॉर्नर आना ही आना है, देखो ऐसे ये 0 पे भी कॉर्नर है, यहाँ भी 1 पे भी कॉर्नर है, 2 पे भी कॉर्नर है, क्योंकि मॉड नीचे वाले पार्ट को ऊपर फ्लिप करते हैं तो कॉर्नर आ ही जाता है, तो मॉड जहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है कि मॉड ऑफ एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कई बार बात हुई जहाँ एफ एक्स 0 होगा, लेकिन अगर खाली ये होता, आप देखो अगर मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स कर दूं मैं, फिर ये हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ये डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे, अभी नहीं है, ऐसे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल बिकम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, फिर वो डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे हो गया जी एक्स, इसके मतलब कि मॉड एक्स इक्वल टू जीरो पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से भी एक मॉड एक्स आ रहा होगा, यहाँ से भी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन आ रहा होगा, और यहाँ भी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू आ ही रहा होगा इसमें से भी। तो इसमें एफ एक्स के एफ एक्स, तो ये तो इतना तो मिनिमम एक्सपेक्ट ही करेंगे एफ एक्स से कि उसमें एक्स माइनस वन एक्स सॉरी उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, उसमें एक्स भी है, उसमें एक्स माइनस वन भी और एक्स माइनस टू भी है, कुछ और भी फंक्शन हो सकता है एच एक्स, लेकिन ये तो उसमें है ही मिनिमम, मिनिमम उसके तीन रूट तो होंगे ही, जीरो वन टू, तीन जीरोस तो हैं ही, जीरो वन टू। अदरवाइज जी एक्स को डिफरेंशिएबल किसने किया, जी एक्स डिफरेंशिएबल इसलिए हुआ एफ एक्स, ये एक्स भी फैक्टर लेके आ रहा है अपने साथ, एक्स माइनस वन भी लेके आ रहा है, एक्स माइनस टू भी लेके आ रहा है, तीनों फैक्टर जी एक्स लेके आ रहा है यहाँ पे, एफ एक्स लेके आ रहा है जी एक्स के लिए, तभी ये तीनों डिफरेंशिएबल हो गए, तीनों पॉइंट पे ये मॉड हट गया, तभी मॉड हटा ये मॉड यहाँ से भी आ रहा था एक एफ से भी, तो एफ ये तीन मिनिमम रूट्स तो होंगे ही, यही बताना था कितने मिनिमम जीरोस हैं उसके, थ्री आ गए थे। सो दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री है, इनवर्स ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बट यू नो कि एकदम एग्जाम में अगर आप पैनिक स्टेट में तो नहीं कर पाएंगे, कि बहुत थोड़ा टीडियस क्वेश्चन भी है ये। रूट ऑफ 12 माइनस टू, इसको मैंने एक्स स्क्वायर को नीचे लेके एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इस तरह से फंक्शन है। तो सबसे पहले तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मिन ऑफ एफ एक्स क्या है और मैक्स ऑफ एफ एक्स, वो इसलिए चाहिए बिकॉज उसी को आगे यूज किया हुआ है, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, और हर जगह में स्मॉल एम कैपिटल एम आ रहा है। तो अब मिनिमम इसका निकालने के लिए, अब देखो मैं इसको इसको मैं वापस एफ एक्स को ऐसे लिख लिया मैंने, टेन इनवर्स रूट 12 माइनस टू, इसमें यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो एक्स माइनस रूट थ्री बाय एक्स का पर स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस टू रूट थ्री, टू प्लस टू रूट थ्री, ऐसे है ये, देखो ये। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी, जब ये जीरो हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये रेशियो मैक्सिमम हो जाएगी ये, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है टेन इनवर्स रूट 12 माइनस टू डिवाइड बाय टू प्लस टू कॉमन लेके वन प्लस रूट थ्री, रूट 12 को लिख लिया टू रूट थ्री माइनस टू डिवाइड बाय टू वन प्लस रूट थ्री, टेन इनवर्स भी है, सो टेन इनवर्स ये बन जाएगा यहाँ पे, रेशनलाइज करके टू कैंसिल किया, रेशनलाइज किया तो आ जाएगा नीचे टू, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, फोर माइनस टू रूट थ्री, सो टेन इनवर्स टू माइनस रूट थ्री, और टू माइनस रूट थ्री होता है टेन 25 डिग्रीज होता है, 15 डिग्रीज होता है ये, तो 15 डिग्रीज हो गया, विच इज पाई बाय 12, नहीं पाई बाय सॉरी 15, टू, एक मिनट, टू माइनस रूट थ्री या पाई बाय 12 सही, तो राइट पाई बाय 12 भी तो हुआ, पाई बाय 630 है तो पाई बाय 12, यस पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 हमारा एंगल आ गया, ये आ गया मेरा कैपिटल एम, पाई बाय 12 है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी कि जब आप देखो कि जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, और इन्फिनिटी हो सकता है, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी तो होगा ही, यहाँ देखिए से देख लो बेशक कि लार्ज वैल्यू क्या आएगी, तो इन्फिनिटी जा सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक्स बढ़ता जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वन बाय इन्फिनिटी इज अप्रोचिंग जीरो, टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो आ गई, एम जीरो एम पाई बाय 12। तो बस ये सारी चॉइस आपसे रिप्लेस करनी है, जैसे ए पार्ट क्या है, साइन इनवर्स टू रूट एक्स इक्वल टू थ्री, टेन इनवर्स टेन तो कैंसिल हो गए क्योंकि इवेंचुअली ब्रांच में पाई बाय 12 है, थ्री इंटू पाई बाय 12, ये पाई बाय 4 हो गया, साइन ऑफ पाई बाय 4 इज वन बाय रूट टू, सो टू रूट एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू, सो एक्स इक्वल टू वन बाय एट, सो एट एक्स इक्वल टू वन, ये वन आंसर हो गया। तो इस तरह सारे पार्ट करने हैं, ये भी देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स cos इनवर्स y इक्वल्स टू थ्री टाइम्स, और tan इनवर्स tan 7m/2, पाई बाय 12 है, ये हो गया tan पाई बाय 24, 7 पाई बाय 24 प्लस ये जीरो है, ये हो गया 3 पाई बाय 8, और ये tan इनवर्स भी है, कैंसिल होकर 7 पाई बाय 4 हो जाएगा, 7 कैंसिल होकर ये हो गया 7 पाई बाय 4 एंगल एक,
तो ये tan इनवर्स है तो कैंसिल ही कर दो, वैसे दिया हुआ है, राइट। ये 0 है तो ये tan इनवर्स 10 भी कैंसिल हो गया। तो ये 7m/2 इज पाई बाय 7 पाई बाय 24 और ये 3 पाई बाय 8 है। तो जो भी मतलब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9 16 पाई बाय 24, 8 से कैंसिल करके 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 है, और 3 से मल्टीप्लाई करना 2 पाई हो गया, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये भी पाई के इक्वल होगा और ये भी पाई के इक्वल होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, cos इनवर्स का ये ग्राफ है। तो दोनों दोनों पाई होंगे तभी सम 2 पाई होता है। पाई होने का मतलब है ये एक -1 होगा, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1, दोनों -1 के इक्वल है, राइट। सो एंड द सी पार्ट इज, अब सी पार्ट में बेटर है कि आप इस तरह से आपने किया हुआ है। देखो आप कि cot इनवर्स 3 है, उसको 1/3 tan इनवर्स 1/3 लिख लिया, समीशन ऑफ सीरीज जैसे करते हैं। cot इनवर्स 3 tan इनवर्स 1/3, सेम वे tan इनवर्स 1/7, cot को tan इनवर्स में कर लिया मैंने, cot इनवर्स को 13 1/21, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यू नो 3 है तो 1 + 2 इन -1, 1 + 1 × 2, सेम वे हर एक को ऐसे लिखा है मैंने, tan इनवर्स 3 - 2 डिवाइडेड 1 + 2 × 3, सेम ही है, सेम वे गोज ऑन, 4 - 3 1 + 4 × 3, सेम यहाँ पे। तो ये माइनस होकर ये बच जाएगा फाइनली tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 1, ये। अब इसका आपने फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया tan इनवर्स 5 - 1/1 + 1 × 5, 4 / 6, और सो cot की फॉर्म में लिख लोगे 2/3/2, सो cot इनवर्स 3/2 है ये। बाहर cot लगा रखा है तो कैंसिल हो गया, 3/2 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं कहीं, लास्ट वन इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी, इसमें भी देखो आप, साइन इनवर्स साइन है, कैंसिल कर दो, ये तो x² - tan ऑफ 3 टाइम्स, ये क्या m की वैल्यू है π/12, x + a⁴ = 0, ये 4 आ गया, tan π/4 1 है, x² - x + a⁴ = 0 है। सम ऑफ द रूट्स 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a⁴ है, राइट। ये a⁴ नहीं दिया हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, अच्छा ये सोल्यूशन निकाल, यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ कुछ न कुछ मिक्स है क्या, f(x) = a इज अ पॉइंट इन डोमेन। देखना पता नहीं, आई डोंट नो, a⁴ दिया होना चाहिए, चॉइसेस में ये नहीं है। अच्छा, x = a इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ x वेयर f अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम वैल्यू x = a पे आ रही है तो मैक्सिमम देखा ही था हमने, कहा यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो ये था ना x - √3/x का ये था, तो x² = हाँ √3। सो अब ये 8a² है बेसिकली, तो a⁴ 3 हो गया, 3 - 1 2 हो गया। अच्छा, ए मेंशन था ऊपर, राइट। तो जो लोकल मैक्सिमम निकाला था वो किस पॉइंट पे पूछा हुआ था, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम था किस पॉइंट पे था वो हमने देख लिया यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था जब ये 0 था तभी मैक्सिमम वैल्यू थी ना, इसको 0 करके यहाँ से x निकाल लिया हमने, वो a के इक्वल है। सो वी हैव वन मोर टू डिस्कस, देन वी आर डन। So this one, some of the parts are easy, some of them are difficult. So at least first will take time. Rest 3 are easy. Last वाला देख लेते हैं पहले। If these are क्या है, ये Z1 Z2 Z3 represent vertices of parallelogram है,
तो बहुत इजी है, अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, यू नो दैट, कहीं तो कैसे भी देख सकते हैं, या तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर z1 माइनस z2 इक्वल टू z4 z3 माइनस z, एक तो एक डायरेक्शन में लेना, सॉरी, एरो इस तरह बनाया तो ये है z2 माइनस z1 एरो इज सेम एज z3 माइनस z4 एरो। जो इससे आएगा वो ऐसे भी कर सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों के मिड पॉइंट इक्वेट कर दिए, एक ही मतलब है इससे, सब कुछ सेम ही आता है इससे, यही आएगा। तो उससे जो वैल्यू आ रही है z1 माइनस z2 माइनस से मल्टीप्लाई किया z1 माइनस z2 इक्वल्स टू, और माइनस z4 प्लस z3 जीरो है, तो सबको इधर लाके माइनस z4 प्लस z3 वो जीरो हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखोगे, सेकंड वाले पार्ट में हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर आप ये कि z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, राइट, ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। तो एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आया कि नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ ये गिवन है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 बाय जेड को जेड कॉन्जुगेट रिप्लेस कर दिया, 2 प्लस जेड कॉन्जुगेट मॉड स्क्वायर 2 माइनस जेड मॉड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया हमने ऐसे और मॉड ने भेज दिया, तो आया 2 प्लस जेड मॉड स्क्वायर और 2 माइनस जेड मॉड स्क्वायर, यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या हो गया 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर इज 1, सो 4 प्लस 1 इंटू 2 10 हो गए, राइट, इस तरह सिंप्लीफाई करना है। इफ यू सी द सी पार्ट इस तरह का क्वेश्चन शायद आपने देखा होगा, तो है क्या परफेक्ट मॉड ऑफ हाफ टाइम्स z1 प्लस z2 प्लस w को रिप्लेस करेंगे रूट z1 z2, ये है सेम वे हाफ टाइम्स z1 प्लस z2 माइनस रूट ऑफ z1 z2, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं और टू को बाहर हाफ को बाहर ले लिया हमने, तो ये बन जाता है रूट z1 प्लस रूट z2 का स्क्वायर का मॉड, हाफ पूरा ही कॉमन ले लिया है, ऐसे यहाँ बन जाएगा रूट z1 माइनस रूट z2 का स्क्वायर का मॉड। नेक्स्ट स्टेप इज आई कैन टेक द स्क्वायर आउट ऑफ द मॉड साइन, तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा रूट z1 प्लस रूट z2 मॉड का स्क्वायर रूट z1 माइनस रूट z2 मॉड का स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी जो पहले देखा था हमने वो होगा 2 टाइम्स, राइट, ये पे यहाँ लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, हाफ तो पहले से ही है बाहर, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, सो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 मॉड रूट z2 स्क्वायर, ये है। फिर हम स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे इनको, तो अंदर ले जाएंगे 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये दोनों गिवन है मॉड z1 मॉड z2, 4 आंसर आ गया। सो अगेन आई रिपीट, यहाँ एलसीएम लेके ये तो ठीक था, अब यहाँ पे ये स्क्वायर को बाहर ले जाना है, प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर इज सेम एज जेड स्क्वायर मॉड, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, इस टू को मैं बाहर ले गया, इसको भी बाहर ले गया, फिर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी जो मैंने यहाँ लिखी थी, बस ये फर्क है z1 की जगह रूट z1 है, यहाँ भी z1 है हमारा रूट z1 है, z2 की जगह रूट z2 है, ऐसे है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, तो उसके बाद स्क्वायर को फिर मैं अंदर ले गया, तो रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों रूट, ये आ गया, राइट। नाउ द ए पार्ट इज लिटिल डिफिकल्ट कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब ये मैं अल्फा बीटा तो हमें गिवन नहीं है, हमें पता है कि अल्फा बीटा ये आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल वगैरह में नहीं डालेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें एक तो 4 अल्फा, इसमें पहले तो आपने ऐसे लिख लिया कि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो पता है मॉड जेड स्क्वायर है ये, और वो 1 होगा बिकॉज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 है, तो उसका मॉड जेड टू द पावर 5 भी 1 है, ये 1 हो गया, ये हट गया क्योंकि मॉड जेड का स्क्वायर था, ये हट गया, रह गया 4 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा रियल पार्ट है जेड का, तो उसको जो टिपिकल होता है कि रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो ये हमने जेड की फॉर्म में तो ले आए,
अब यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए ये कैंसिल होके 2 हो गया, 2z प्लस जेड कॉन्जुगेट। यहाँ मैंने भी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बाहर कॉमन लिया, 2/4 आ गया। आयोटा था, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ माइनस, वो भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, राइट। तो ऊपर यहाँ रहेगा z माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये if we multiply them, so ये आ गया -12 z प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो जो कॉन्जुगेट है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है ना इसमें, ये गिवन है कि अच्छा ये फिफ्थ रूट्स ऑफ मॉड z टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 है ना यहाँ भी, तो ये प्रॉपर्टी लगा ही सकते हैं कि सारे ये कि z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 है, ये प्रॉपर्टी तुम यहाँ यूज ही कर सकते हैं। तो मैंने कॉन्जुगेट हटाने शुरू कर दिया, 1/z लिख लिया इसको, इसको भी z स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर, या पहले सिंप्लीफाई कर लो बेटर है तो उतना ऐसे, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर है, वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये तो आ ही गया, राइट। ये इससे कैंसिल, तो माइनस z प्लस 1/z, यहाँ हमने कर लिया z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने इसको। तो ये हो गया z टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय z, and then I multiply the two numerators, z to the power 6 plus z square plus z to the power 4 plus 1 divide by z cube. Now I multiply with z square divide with z square. Why? Because denominator 1 बन जाएगा, z to the power 5 है 1 बन गया, न्यूमरेटर में z square से मल्टीप्लाई किया, एक z square आया, एक z to the power 6 आएगा, एक z to the power 4 आएगा, और एक आएगा z to the power 8, राइट। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, ये z स्क्वायर है, ठीक है, ये इसको z टू द पावर 5 को 1 डाल दूंगा तो z बन जाएगा, ये z टू द 5 इज 1, z टू द पावर 4, और ये z क्यूब बन गया डिवाइड बाय 1, बाहर माइनस भी था। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या सम ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी तो है ये, z टू द पावर 5 1 है, तो z स्क्वायर z क्यूब z टू द पावर 4 z टू द पावर 5 ये 1 ले लो, ये फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये इनका सम 1 होगा, राइट। इन सबका सम 1 है, बिकॉज 1, क्योंकि बिकॉज z है क्या, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो z स्क्वायर नेक्स्ट रूट है, z क्यूब है, इनका सम 1 है, सिर्फ ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करना है, ये सम 0 हो गया, सॉरी सम 0 हो गया, इनका सम ऑफ 5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये सम 0 हो गया, तो रह गया -1 1 हो गया आंसर। तो कैलकुलेशन थी इसके अंदर कि सारा सिंप्लीफाई करना पड़ रहा था, हमने सबसे पहले भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हटाया, राइट। फिर उसके हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया, हमने फिर हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया, अल्फा और बीटा को z की फॉर्म में, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2, इसको z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा, और फिर हमने साथ में ये भी कर दिया z कॉन्जुगेट वी नो इज 1/z, राइट। तो और कोई देखना हो मेथड हो तो दिस इज द वे वी कैन सिंप्लीफाई, बट you know if you can try using some other way. So you discuss all the questions from this paper. So again you know the solution है, आपने देखे होंगे, तो आइडिया सिर्फ यही था कि जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लास में नहीं आते हैं, यू कैन रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स, या कुछ नई चीज सीखने को मिले, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन। बट लेकिन थोड़ा आई वुड सजेस्ट, जैसे अभी 2 पेपर हमने कर लिए हैं, तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लो इनकी, because what फिर time bound exam में time will be a major problem. So once you have idea how to do these questions, maybe next week or maybe next whenever, so all these mock tests you have to do them again, but in time bound now after this discussion classes. That's the best way to go. Thank you. Good night.